Bismillahirrahmanirrahim. Al-Rahman Alam al-Quran Khalaq al-Insana Alam al-Bayan. Today, on this inaugural day of the 1 week training program, I heartily welcome the esteemed chief guest of this training, esteemed Honorable Vice Chancellor Sir, and esteemed guest of honors, Dr. Harun Naik, Director Research Sir, esteemed Dean Faculty of Horticulture, Professor Dr. Shikhi Sir. I also welcome Registrar Professor T.H. Masoodi Sahab Sir in this inaugural function, sir. Today, we have organized the inaugural function of the 1 week training program on promotion of biocontrol agents. As you all know of the facts that due to the excessive use of chemical pesticides, we have a global threat of losing the biodiversity, and the contamination has been taking place in the soil, water, and which is also a threat to losing the beneficial insecticides. In this regard, we have organized the training program for which I express a deepest sense of gratitude and highest veneration to chief guest of this event, respected Honorable Vice Chancellor of Coast Kashmir, Professor Dr. Wazir Ahmad Garai sir. On behalf of KVK, we heartily welcome your good self, sir, for your valuable time and your joining at this event, sir. We are highly grateful to you, and your presence had put us in asylum esteem, sir. I am highly grateful to Director Research, Professor Harun Naik sir. Sir, we highly express gratitude for your presence in this occasion, sir. I also express the profound gratitude to the Sir Dean Faculty, Professor Shibir Ahmad Wani sir, for your presence. I also express the gratitude and welcome to Dr. T.H. Masoodi sir, Registrar, Coast Kashmir, sir. This is the sir program, sir, we are going to organize for the 1 week, where we have the participants who are highly qualified, sir, where they are the graduates and postgraduates who are very enthusiastically waiting to learn this program, sir. And sir, I request the Professor Head, Professor Ishfaq Abdi sir, to brief about this program. Very good morning to all the esteemed members. On behalf of KVK Gandharwal, I formally welcome our Honorable Vice Chancellor, Professor Nazir Ahmad Garai sir, Professor Harun Naik sir, Director Research and Director Planning, Dean Horticulture, Professor Shibir sir, and our esteemed Registrar, Professor Tariq Masoodi sir. I also welcome the HODs and fellow scientists who have come here, the people from the industry and the fellow participants. Sir, I briefly will introduce about this training program. This is an MSc sponsored advanced ESTP, which has been formulated with the theme of promoting organic agriculture and large-scale skill development of biocontrol agents. As you are already aware, sir, that the organic agriculture is the growing sector across the globe, and presently in India, this sector has witnessed a tremendous growth for the last 2-3 years. And the global agriculture market is presently estimated to be about 8,000 to 9,000 million US dollars. And with this growing demand for organic products, there is the scope for biocontrol agents and other inputs which are essential for organic agriculture, particularly the varied types of biocontrol agents which we require for both pest management as well as keeping in view the indiscriminate use of chemical fertilizers, chemical molecules, its ill effect on the health of human health and the devastating environmental sustainability. With your vision of green economy and sustainable agricultural practices, this training program was conceptualized with the focus to promote entrepreneurship and startups in this sector. And we have invited the participants from across the valley. We have participants from all the districts almost, and people who are presently
associated with the input production as well as the people which are in biocontrol industry. In this will be a 1-week training program, and we have invited scientists from across the country. Particularly, sir, the lead speakers are Professor Amay Zargar, Mr. Sanjay Chaudhary, who is the Vice President of Strategic and Corporate Affairs, Indo-Gulf Crop Sciences, and we have Dr. Satnam Singh from Senior Entomologist from RSS Faridkot. Then we have Mr. Altaf Saab from our microbiology, Malik Mukhtar Saab, Dr. Zade Baba, F.A. Mahidin, our whole faculty, and we have people from industry, Mr. Oyub Khalid Qadri from Biostat. And we have our own Almunia, who is working in Biostat, Mr. Sheikh Nasir, sir. So he is presently. So we try to involve the people from industry, people from the different institutions, and fellow entrepreneurs who will encourage our participants to go for large-scale mass production, rearing, and new techniques, whatever the new techniques and skills which are going to inculcate in our entrepreneurs, so that they are able to become future prospect. They can create their future prospect enterprises and develop business models and promote as startups in this sector. Sir, I once again welcome you to this program, and I with humbly, because this was the first meeting after your extension, and we are from KVK Gandarbal. We felicitate you, will felicitate you for your new term, and because your vision and mission has transformed this whole university, and we really look forward for making this institution a world-class institution, not nationally but globally, as your dream is. And you have always taken first steps in almost each and every aspect of both in policy making as well as transforming these institutions from simple academic and research institution to world-class institutions. We congratulate you, sir, for your vision, and we are hopeful that during your second term, this institution will rise globally, and really we are all highly thankful for your futuristic approach, and the team along with you who has worked day and night, all the scientists, all the officers. I am highly thankful to all the team associated with you who has been instrumental in making SCOS Kashmir a world-renowned institution presently. Thank you very much, sir. Nothing great can be achieved without a great leader, sir. We'll begin with a felicitation as a mark of respect and love for the outstanding contributions of our esteemed guests, sir. Sir, I would request, sir, Professor Harun Naik, Director Research, sir, to felicitate our esteemed, respected Vice Chancellor, sir. Professor Shabir Ahmed, Dean Faculty, sir, to facilitate Director Research, Professor Harun Naik, sir. This is also a token of love and respect from Sir KVK, sir. Sir, now I would request our Professor and Head Dr. Ishbaq Abdi, sir, to felicitate Professor to facilitate TH Masoodi Saab, sir. Restores cost. Now I would request, sir, Professor Ishbaq Abdi, sir, again, sir, to felicitate, sir, Dean Faculty of Horticulture, Professor Sidra Mohani, sir. पहले तो मैं अपने रजिस्ट्रार डॉक्टर टी.एच. मसूदी को मुबारकबाद देता हूँ इस पुराने से इस हाल को एक रिनोवेट करके एक बहुत ही खूबसूरत वाइब्रेंट वेल लाइटेड हाल बनाने के लिए, कुछ ये जो सारे गैजेट्स लगाने के लिए, और ये बहुत ही अच्छा जो ये पोडियम है इसको भी यहाँ पे फिक्स करने के लिए, जो काफ़ी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और दूसरा हारून साहब को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इमो कर्कुलम इमो यूनिवर्सिटी में सिटी 5 प्रोग्राम इम्ति आज हुए इस प्रोग्राम में आत्मना ने MSME 5 प्रोग्राम यह मतलब स्क्रीन वहन सासन तही यह जवान ट्रेनिंग दी तो वारहन दीजिए तो इशू तिमोस आ ग्रुप
تو یم زن یم 500 پروگرام واریاہ سن فیکلٹی ٹیچرس کے وی کیو پہ یا باقی ریسرچ انسٹیٹیوٹ پہ آرگنائز کران تو ازیک پروگرام ڈاکٹر اشفاق عابدی یم سن پی سی کے وی کے گاندربل یمو پروگرام سوچ بڑا بہترین پروگرام بایو کنٹرول ایجنٹن پہ تہ متعارف کرناؤن تو یمن پروگرام مبارکباد دیوان تو بیس ڈی ایم صاحب فیکلٹی آف ہارٹیکلچر بیس باقی سینئر کلیگ یمن مبارکباد دیوان کہ یم یتھن پروگرامن من حصہ نوان تو ساروی کھت زیادہ اہم یم تھی آز آمت یور پروگرامس من حصہ نن بہت تھوڑا سا کٹ شاٹ کرن یہ میرے بیاکھ میٹنگ تو یم تھی ساروی کھت زیادہ اہم سانہ خاطر سہ مطلب گو یہ کہ پتمو 3 ؤریو پہ منسٹری آف ایم ایس ایم ای تمن وت پتمو 3 ؤریو پہ قریب 500 پروگرام سینکشن کران یم سن بچہ پرمت لکھن بچہ ان ایمپلایڈ مگر تم یژھان کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ کرُن تم ہُنر مند بناونہٕ خٲطرٕ سکل کرنہٕ خٲطرٕ تم پنن کھۄرن پٮ۪ٹھ کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ کھڑا گژھنہٕ خٲطرٕ چھِ تم اَسہِ کینٛہہ ٹریننگ پروگرام تہِ سینکشن کٔرمٕتۍ پرسے 550 یہُس تہِ چھِ لگ بگ 500 پروگرام تو کُنہِ تہِ یونیورسٹی منٛز چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پروگرام أسۍ کران تو یُس وۄنۍ یہِ أزیُک پروگرام چھُ یہِ تہِ چھُ بڑٕ اہم اگر تُہۍ وٕچھان ٲسِو آز کل چھِ لگ بگ واریاہ اویرنیس لُکن منٛز یہِ گٔمٕژ پٲدٕ کہِ اَسہِ پزن کھادٕ کم استعمال کرنہِ اَسہِ پزن دوا ہُنٛد استعمال کم کرُن کیازِ تمیُک مُضِر اثرات چھِ اَسہِ پاے یہِ زٔمیٖن چھےٚ زٔمیٖنس منٛز أسۍ کھاد تراوو دوا تراوو یا کُلٮ۪ن چھکو أسۍ دوا تمہِ سۭتۍ چھُ ماحولس تہِ اثر پیوان بُرٕ تمہِ سۭتۍ چھِ یِم زن أسۍ کیٚمۍ کرٛیٖل چھِ تِم تہِ چھِ مران یِم زن فٲیدٕ منٛد کیٚمۍ کرٛیٖل چھِ آسان تمہِ سۭتۍ چھِ یۄس زن سۄ بایوڈایورسٹی چھِ گژھان خراب اِنسٲنی صحتس پٮ۪ٹھ چھُ بُرٕ اثر پیوان تہٕ بیٚیہِ یۄس زن سٲنۍ زٔمیٖن چھِ سۄ تہِ چھِ گژھان خراب اگر أسۍ زٔمیٖنس منٛز أسۍ کُنہِ جایہِ کھاد تراوو یوٗریا کھاد تراوو تتھ منٛز آسان أسۍ بُمہٕ سِنۍ اگر أسۍ بُمہٕ سِنۍ آسان تتھ منٛز یِمن ونان چھِ أرتھ ؤرمٕز تتھ تراوو أسۍ کھاد سیٚٹھاہ پہن تِم سارے بُمہٕ سِنہِ ونان تھوڑا ٹایمس منٛز یہ کرنا بند یاری تو توٕ چھُ ضروٗری کہِ اَسہِ چھِ 2 چیٖز کرٕنۍ یِم أسۍ یِم پروگرام چھِ أسۍ کران ایم ایس سی پروگرام امہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ 2 مقصد چھِ اَسہِ اکھ مقصد چھُ اَسہِ یہِ پننہِ کٔشیٖرِ منٛز لُکن خٲطرٕ یا پننٮ۪ن جوانن خٲطرٕ ایمپلایمنٹ اپرچونٹیٖز کریٹ کرٕنۍ اکھ ایمپلایمنٹ گٔے روزگارٕکۍ کینٛہہ ذٔریعہٕ گٔے تِم یِم زن سرکار چھُ پرووایڈ کران سرکار چھِ دپان یہِ نسا چپرٲسۍ چھِ لگاوٕنۍ ڈرایور چھِ لگاوٕنۍ باقٕے یِم زن یِم مُلٲزِم چھِ لاگٕنۍ تِم چھِ وۄنۍ واریاہ کم تِم چھِنہٕ وۄنۍ لگ بگ سپدیمٕتۍ تِم چھِ وۄنۍ تھکیمٕتۍ سٲنۍ سرکار وۄنۍ چھنہٕ تِم نوکری ایویلیبل کینٛہہ مگر أسۍ چھِ ونان أسۍ کرو تمہِ قٕسمٕکۍ تِم روزگارٕکۍ موقعہٕ فراہم ییٚمہِ سۭتۍ تُہۍ صرف پانے یوت نہٕ کینٛہہ پانس سۭتۍ تھٲیِو تُہۍ بیٚیہِ 4 8 10 نفر ہیٚکِو تُہۍ پانس سۭتۍ ایسوسیٹ کٔرِتھ یتھ منٛز چھُ تۄہہِ بہٕ وٕچھان کینٛہہ تِم یِم بہٕ زانکھ یِم چھِ یتھ بِزنس منٛز برونٛہٕے آمٕتۍ یِم چھِ پانہٕ تہِ کران تہٕ یِم چھِ پانس سۭتۍ چھُ بیٚیہِ کینٛہہ جوان تھٲمٕتۍ پانس سۭتۍ مُلٲزِم تھٲمٕتۍ گوٚو سُہ گوٚو اکھ گوٚو اَسہِ روزگارٕکۍ ذٔریعہٕ پٲدٕ کرٕنۍ تہٕ دوٚیِم چھِ اَسہِ جموں کشمیٖرٕچ معٲشیت تہِ بہتر کرٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ سٲری کٲشِر یِم زن پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ چھِ جوان چھِ أسۍ پانہٕ گژھو یِتھٮ۪ن بِزنسن منٛز کرو أسۍ کھڑا بجاے أسۍ کہِ أسۍ وٕچھو باقین سٹیٹن کُن پنجاب ہریانہ راجستھان تتہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان اَسہِ ٹرکن منٛز بٔرۍ ؤرمہِ کمپوسٹ پتہٕ چھِ أسۍ آسان تتھ چھِ آسان کانٛہہ نیٚبرۍ کینٛہہ برینڈ لیکھِتھ آسان گوٚو ؤرمہِ کمپوسٹ چھُ آمُت راجستھان پٮ۪ٹھ یا کُنہِ جایہِ بیٚیہِ جایہِ پٮ۪ٹھ چھُ آمُت پتہٕ ییٚلہِ لُکن ییٚمہِ ساتہٕ تِم تراوان چھِ تتھ چھِ آسان سُہ کرٛہنہِ میٚژِ کینٛہہ رنٛگ دیُتمُت تِمو کرٛہُن رنٛگ اَسہِ چھُنہٕ آسان پَیی سۄ کٲم ہٮ۪کو أسۍ پانہٕ تہِ کٔرِتھ ییٚتہِ مگر وُنیُک تامَتھ چھِ أسۍ لگ بگ نیٚبرِم پٮ۪ٹھ گوٚو اکھ چھُ اَسہِ تتھ چھُ آسان ویٖڈ چھِ آسان سۭتۍ بیٚیہِ چھُنہٕ سُہ پوٗرٕ کالٹی ہُنٛد آسان کِہیٖنۍ گوٚو یۄس کٲم أسۍ پانہٕ ہٮ۪کو کٔرِتھ تہٕ أسۍ کیازِ ہٮ۪کو نہٕ پانہٕ کٔرِتھ یِتھ کٔنۍ أسۍ پتہٕ کرو یِم تِم سٲنۍ کٲرۍگر چھِ کٲسِب چھِ اکثر بیشتر چھِ وٕچھان تِم چھِ بِہار پٮ۪ٹھ یوٗ پی پٮ۪ٹھ باقٕے سٹیٹو پٮ۪ٹھ چھِ یور یِوان مگر کٲشرٮ۪و چھِ ترٛامٕژ أسۍ تِم کامہِ کرنہِ مگر یِم چھِ تِم کینٛہہ کامہِ یِم زن بڑٕ اصل کامہِ چھِ تہٕ ترٛیٚیِم چھُ پتہٕ اَسہِ بیٛاکھ مقصد کہِ اَسہِ چھِ پونٛسہٕ تہِ کماوُن معیشت تہِ چھِ أسۍ مضبوٗط کرٕنۍ تُہۍ تہِ چھِو ہُنر مند بناوٕنۍ مگر اَسہِ چھُ پنُن ماحول تہِ ٹھیٖک تھاوُن اگر أسۍ ایگرِکلچر کرو یا ہارٹیکلچر کرو یا باقٕے لایف سٹاک ہسبنڈری کرو یا کانٛہہ تہِ أسۍ کٲم کرو أسۍ کرو ترقی تہِ برونٛٹھ تہِ پکناوو مگر سانیو تِمو کامیو سۭتۍ گوٚژھ نہٕ ماحولس پٮ۪ٹھ بُرٕ اثر پیوٚن کِہینۍ مےٚ چھُ باسان اَسہِ سارنٕے چھُ وٕنکیٚنس پاے اکثر بیشتر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ بوزان چھِ کٲنٛسہِ گرس منٛز چھُ کانٛہہ بٮ۪مار کانٛہہ چھُ پیشنٹ چھُ تِمن گرس پتہٕ چھِ ونان ہے تٔمِس حظ چھُ ذرا تکلیٖف سُہ حظ چھُ ذرا مُشکل پہن چھُس اَسہِ چھُ گژھان پانہٕ گۄڈنیُک شک کہِ أمِس گوٚژھ اللہ تعالیٰ کینٛہہ تیُتھ کینٛہہ آسُن دود یا کینسر رٹایہِ تہٕ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ؤنکیٚس اگر تُہۍ وٕچھان پٔتمٮ۪ن ؤرین منٛز چھُ کینسرُک تعداد واریاہ زیادٕ بٔڑمٕژ سٲنۍ ہسپتال چھِ بٔرۍ بٔرۍ کینسر پیشنٹو سۭتۍ سُہ کیازِ چھُ اکھ گوٚو زیادٕ پہن چھُ تتھ یۄس أسۍ کھٮ۪وان چھِ أسۍ کھیوٚن چھِ أسۍ کھٮ۪وان چاہے سبزی پھل کھٮ۪مو تتھ منٛز چھِ آسان أسۍ
کیمیکلز پیسٹسائڈس واریاہ زیادٕ تُہۍ اگر بیٚیہِ یہِ تہِ ٲسِو وٕچھان اگر تُہۍ چھُو لۄکٹہِ لۄکٹہِ سٲری بَچہِ اگر تُہۍ تُہٕنٛدۍ یِم پیرَنٹٕس مٲلۍ مٲجۍ یِم تِمَن پِرٛژھِو تُہۍ پَتھ کالہِ ٲسۍ تِم جانوَر ٲسۍ آسان ژَرِ کاو ہارِ بُلبُل طوطہٕ دُنہِکۍ ٲسۍ آسان جانوَر ہے نا تِم ہیٚتِن ختم گژھٕنۍ تِم سارک تِم باقٕے تِم فراگٕس تِم گٔے ختم ضروٗری چھُ اَسہِ چھُ ماحول تہِ بَچاوُن تہٕ برونٛٹھ کُن ترقی تہِ کَرٕنۍ تہٕ بہٕ کَرٕ وۄمید یہِ کہِ یِم تُہۍ سٲری اَسہِ یَتھ پرٛوگرامَس منٛز آمٕتۍ چھُو تۄہہِ چھو یَتھ پرٛوگرامَس منٛز دِلچسپی اِنشاء اللہ 7 دۄہَن منٛز یِتھ کٔنۍ تِمو یہِ پرٛوگرام ترتیٖب دیُتمُت چھُ یِمو چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ ایٚکسپٲٹ نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ تہِ أنمٕتۍ پَنٕنۍ ایٚکسپٲٹ تہِ چھِ یَتھ منٛز تہٕ یِم کَرَن اَکھ پرٛوگرام وَضع یِم وٕچھَن کہِ سیٚدُے گژھِ یِم تُہۍ کَران چھُو آلریڈی اَتھ بِزنِس منٛز تِم گژھن پَکناوُن پَنُن بِزنِس ہیوٚر یِم وۄنۍ نٔے آمٕتۍ چھِ تِم گژھن سیٚدُے اَسہِ یہِ وَنٕنۍ کہِ تِم کِتھ کٔنۍ کَرن اَمہِ پَتہٕ بِزنِس سٹاٹ بیٚیہِ یِم زَن کینٛہہ آپرچُنِٹیٖز چھِ ایچ اے ڈی پی یَس منٛز چھِ یا بدل کینٛہہ سینٹرلی سپانسٲڈ یا سٹیٹ سپانسٲڈ سکیٖمٕز چھِ یِم چھِ تَتھ سۭتۍ جوڑٕنۍ تاکہِ یِمن کینٛہہ اِنسینٹِوٕز اگر تِمن سکیٖمن منٛز آسن تِمن گژھن تَمیُک سُہ بینِفِٹ واتُن بیٚیہِ اوسُس بہٕ اوترٕ أکِس پروگرامَس منٛز وَنان کہِ أزکہِ پٮ۪ٹھ کٔرِو تُہۍ کٲم سٲری بَچہِ یِم تُہۍ آمٕتۍ چھِو پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گژھِ آسٕنۍ اَکھ ڈایری سۭتۍ لۄکٕٹ نہٕ کینٛہہ کاغذ تِلہٕ نہٕ کینٛہہ اَکھ اَصٕل ڈایری گژھِ آسٕنۍ تَتھ ڈایری پٮ۪ٹھ گژھِ آسُن تہٕ یہِ بایو کنٹرول ایجنٹ چھُ یا آرگینِک فارمِنٛگ گژھِ اَتھ بارَس منٛز گژھِ آسٕنۍ تُہۍ سٲرٕے اِنفارمیشن جنریٹ کٔرمٕژ جمع کٔرمٕژ تۄہہِ گژھِ آسُن یہِ ییٚتہِ بوٗزِو تہِ لیوٗکھمُت بیٚیہِ گٔژھِو تُہۍ صُبحس شامَس پانہٕ تہِ لِٹریچر کَرٕنۍ سٹڈی اَمے کیٛاہ گوٚو تَمہِ پَتہٕ گژھِ آسٕنۍ پَتہٕ تِم کَم ٹیکنیٖکٕس چھِ ٹیکنالجیٖز چھِ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ یا ؤرمہِ کمپوسٹ کَرو ٹرٛایکوڈرما کَرو یا باقٕے یِم زَن بایو ایجنٹٕس کَرو کِرٛیٹ تہٕ لاسٹَس گژھِ آسُن بیٚیہِ منٛزٕ گژھِ آسٕنۍ یہِ لیکھِتھ تِم کَم سکیٖم چھِ یہِ گژھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ تۄہہِ منٛزٕ گژھِ آسٕنۍ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ نفرَس تانۍ تِم کَم سکیٖم چھِ یِم جموں کشمیٖرَس منٛز سانہِ سکیٖم چھِ یا سینٹرلی سپانسٲڈ سکیٖم چھِ یِمن ہُنٛد تُہۍ فٲیدٕ تُلِو مےٚ چھُ باسان اِشفاق صٲب ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ پَگاہ یِمن سرٹِفِکیٹ دِیِو تُہۍ کٔرۍزیو یِمن ہٕنٛز سۄ ڈایری چیک تَمہِ سۭتۍ تَرِ اَسہِ فِکرِ کہِ یِم کۭتیاہ چھِ روٗدمٕتۍ سیٖریَس کلاس منٛز یِم کوتاہ چھِ یَژھان ہیٚچھُن تہٕ یِمو کوتاہ چھِ ییٚمہِ کلاسہٕ نٮ۪بر بیٚیہِ تہِ ہیٚچھنٕچ کوٗشِش کٔرمٕژ تہٕ بہٕ کَرٕ پوٗرٕ وۄمید تُہۍ سٲری گٔژھِو سٲنۍ ینگ ایگری بِزنس ایگری انٹرپرینر بَنٕنۍ تاکہِ تُہۍ تہِ گٔژھِو پنٛنٮ۪ن کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ کھڑا تہٕ تُہنٛدِ سۭتۍ واتہِ سماجَس تہِ فٲیدٕ تہٕ بیٚیہِ کَرٕ بہٕ اَکہِ لَٹہِ ہارون صٲبَس تہٕ بیٚیہِ اِشفاق صٲبَس مُبارک کہِ یِمو کوٚر یہِ پروگرام تُہنٛدِ خٲطرٕ ییٚتہِ آرگنایز تہٕ اِنشاء اللہ تعالیٰ تۄہہِ میلیو اَمیُک سٮ۪ٹھاہ فٲیدٕ. Sir, Director Research, Professor Arun Naik sir, sir, remark this function with his valuable words. Everyone, مےٚ چھُ ناو اِرشاد احمد ڈار بہٕ چھُس ڈِسٹرٛکٹ پُلوٲمِس منٛز روزان بہٕ چھُس ایم ڈی گہلی آرگینِک فارم پرٛوڈوٗسر کمپٔنی اَسہِ چھُ اکھ ایف پی او چلان تہٕ بہٕ چھُس آرگینِک فارم پٮ۪ٹھ کٲم کران تھرٛوٗ آوُٹ جموں اینڈ کشمیٖر ریٖسنٹلی کٔر مےٚ اکھ ماسٹر ٹرینِنگ حیدرآبادس منٛز نیشنل انسٹیٹیوٹ فار آرگینِک اینڈ نیچرل انسٹیٹیوٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اقبال بٹ ہے. میں کوئل پلوامہ سے ہوں. میں ایک ورمی کمپوسٹ یونٹ چلا رہا ہوں پچھلے 2-3 سالوں سے جس میں مجھے کافی فائدہ بھی ہوا ہے اور کافی اس میں مجھے کافی مطلب سکاسٹی نے پوری طرح سے جانکاری دی ہے جس سے مجھے کافی فائدہ ہوا ہے. آپ کا کتنا ٹرن اوور ہے؟ میرا ٹرن اوور ہے 50 lakhs. جی سر. Assalamu alaikum. My name is Shawkat Ahmed Bhatt from district Pulwama, zone leader. Currently I am doing high density apple farming اور اس میں ہمیں بایو کنٹرول ایجنٹس کی بہت ضرورت ہوتی ہے اس لیے میں اس ٹریننگ میں آیا ہوں. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مشتاق احمد بٹ ہے. میں برین نشاد سے تعلق رکھتا ہوں اور میرا بھی ایک ورمی کمپوسٹ یونٹ ہے تو میں نے اس میں 2-3 بندوں کو جاب بھی دیا ساتھ ساتھ اور میرا ٹرن اوور آلموسٹ 3 to 4 lakhs ہے. السلام علیکم. میرا نام بلال احمد شیخ. میں مرن پلوامہ سے. تو میرا ایک ورمی کمپوسٹ یونٹ ہے ساتھ ساتھ ایک سوائل ٹیسٹنگ لیب بھی ہے اور سپان لیب بھی ہے. تو ہم نے ایک بایو کنٹرول لیب بھی وہاں بنائی ہے. تو ہمارا تقریباً ٹرن اوور 1 crore سے اوپر ہے اور ہمارے وہاں تقریباً 20 لیبر بھی کام کرتے ہیں. السلام علیکم سر. مائی نیم از ڈاکٹر پیر محمد جنید. آئی ایم فرام اننت ناگ. سر میں نے بھی ریسنٹلی ایک ورمی کمپوسٹ یونٹ اسٹارٹ کیا ہے وہ ساتھ میں ایک سوائل ٹیسٹنگ لیب ہے. سر السلام علیکم. فیصل ظہور احمد فرام گاندربل. آئی ایم نیو ان آرگینک فارمنگ. نام بتائیے آپ اپنا. السلام علیکم. میرا نام عمران قادر. میں چاٹرا بڑگام سے. السلام علیکم.
My name is Ashwin Mishra. I am from Chawra, Madagascar. Assalamu alaikum. My name is Mohammed Irfan. I am from Rajpura, Pulwama. Assalamu alaikum. Myself Pakiza Khan. I am a student of MSc Plant Pathology at Faculty of Agriculture, Wadla. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुबीना रशीद है, मैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौसीफ है, मैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से। अस्सलाम वालेकुम, तो मेरा नाम इकरा जान है, मैं भी डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यास्मीन जबीन है, मैं पटन से हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राहिला फारूक, मैं पटन से हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफूरा कादरी है, मैंने एमएससी बॉटनी किया है। हम भी इस ट्राइकोडर्मा से डील कर रहे हैं, अभी वो अंडर प्रोसेस है, अभी स्टार्ट नहीं की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जियाउल्लाह कादरी है, मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हूँ। तो हम टीम जो हमारी है वो हम डील कर रहे हैं ट्राइकोडर्मा से, हमने अभी स्टार्ट नहीं किया है। सो वी आर हियर टू नो मोर अबाउट ट्राइकोडर्मा एंड टू गेट अवेयर अबाउट दिस। Thank you, Trains, for giving your introductions. Just a minute, sir. गुड आफ्टरनून एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख नसीर है और अभी मैं बेसिकली सीनियर टेरिटरी बिजनेस मैनेजर हूँ बायोस्टैट इंडिया लिमिटेड में। तो थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग अस। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करें हम। थैंक यू। Thank you so much for this introduction and showing this enthusiastic energy in taking the part in training. So now, sir, I will introduce you, sir, the versatile personality who will give you the online lecture, Professor. First, you accept all congratulations from my side. Thank you, sir. Secondly, this is only my input, not lecture. Okay, sir. Because lecture के लिए मैं physically वहाँ आऊँगा इंशाल्लाह. So this time I am in Madhya Pradesh with farmers only. Just came back from the farmers field. अपने आप को फार्मर से निकाल के, क्योंकि इश्फाक साहब ने लिखा था that you join immediately, so I am joining here. So all the officers of the university, a very good afternoon. I think I can speak in any language क्योंकि जो gentry वहाँ पर they can speak English, they can speak Urdu, they can speak Kashmiri. So विशी साहब का मैं सुन रहा था, वो कश्मीरी में बोल रहे थे। I thought कि लोग जो वहाँ पर हैं वो शायद कश्मीरी ही ज़्यादा समझते हैं। So I have that liberty now. I can speak any language. So thank you very much for giving me this opportunity to be part of this training program. Especially I thank Ishfaq sir that he called me several times that I should join this program because this program is very important program. जो इस प्रोग्राम के बारे में मैं इसलिए बताऊंगा कि जो ये थीम इस प्रोग्राम का है, all about organic farming or you can say biocontrol agents, even youth and management. इस पर्टिकुलर थीम पर हमारी यूनिवर्सिटी का काम पिछले कई सालों से चल रहा है, आई थिंक मोर देन 30 years. तो लेकिन आज लोग इसका रियलाइज कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग और बायो कंट्रोल एजेंट्स और बायोलॉजिकल एजेंट्स से, क्योंकि अगर हम देखें कि हैवी यूज, एब्यूज, एक्स्ट्रा यूज ऑफ ऑल पेस्टिसाइड, whatever is being pumped inside our soil, that is creating problems for the soil. उसमें जो soil में हमारे eco friendly और farmer friendly organisms हैं, चाहे micro हैं चाहे macro हैं, both are getting killed by our ruthless use of pesticides. आप देखेंगे अगर if you see the data, और जब भी हमारा प्रोड्यूस गया बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए, तो ये भी देखा गया कि हमारे कुछ कंट्री से भी रिसेंटली बासमती वापस आ गई, क्योंकि उसमें एमआरएल वैल्यूज जो इसके थे पेस्टिसाइड्स के, दे वर टू हाई, अनएक्सेप्टेबल. सो इसी तरह हमारे आपको मैं चीज बताऊंगा जो अंगूर का, बिकॉज आई एम लुकिंग आफ्टर मेनी एरियाज दिस टाइम इन अंगूर जो बेल्ट हमारा है इसका महाराष्ट्र का, वहाँ पर भी जाता हूँ. 30 से 40 स्प्रेज होती हैं इसकी पेस्टिसाइड्स की. इवन आफ्टर हार्वेस्टिंग वो डिप करते हैं पेस्टिसाइड का. तो हमारी सेहत का किसी को ख्याल नहीं है, हमें अपना ख्याल खुद नहीं है. आपने सेब की तरफ देख लीजिए, आप 10-15 स्प्रेज करते हैं, लेकिन आई एम रियली हैप्पी कि यूनिवर्सिटी ने एक स्लोगन चेंज किया है. इससे पहले हम स्प्रे शेड्यूल के नाम से इसको अजरा करते थे, बट नाउ इट इज ऑन द नेम ऑफ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, जो भी इंटीग्रेटेड प्रैक्टिसेस हैं. बट आई वुड रादर रिक्वेस्ट हारून साहब and his team that we should have a separate schedule for nutrition, for biological, so that people can have an option.
they can have an option with them کہ ہم اس کو کریں یا اس کو کریں. تو جہاں تک مطلب ابھی وی سی صاحب بھی ورمی کمپوسٹنگ کا بات کرتے ہیں, when I was there as a director, sir, I remember one day a family, a couple came to me. They were, Ashfaq Sahab must be knowing it very well, they were from Ludhiana and they were working on vermicomposting. They were supplying vermicompost from Ludhiana, Punjab to this Kashmir area. They just came for an interaction with me. My first question to them was that how much was your turnover? It was 1 crore. That time, I think it is 6 or 7 years back. So next thing came into my mind, why my youth is not doing its job on this particular direction. اگر وہ 1 کروڑ یہاں وہاں سے باہر سے آ کے کما رہا تو کیا ہم اس کا 50% بھی حساب کما نہیں سکتے ہیں؟ آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو سی دیٹ لوگ یہاں پر اب کام کرنا شروع کر چکے ہیں. اینڈ آئی ریممبر 2003 میں ہم نے ورمی کمپوسٹنگ کا پہلا کام شروع کیا تھا یونیورسٹی میں. مائی اسٹوڈنٹ امتیاز جہانگیر خان, ہم نے اس کو ورمی کمپوسٹنگ پر ایک تھیسس بنوا دی ان کے ذریعے سے. تب صرف ایک ورمی کمپوسٹنگ یوز ہوا کرتا تھا بڑگام ایریا میں, کری پورا ایریا میں, دیٹ واز انڈر KVIC. اس کے بعد وی ہیڈ اے لارج نمبر آف ورمی کمپوسٹنگ یونٹس. آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ کافی ایفرٹس بن چکے ہیں, بہت لوگ آگے بھی بڑھ رہے ہیں, آنا چاہتے ہیں. تو I should appreciate the work being done by thus far by our scientists, by our جو ہمارے خاص کر فیاض صاحب ہیں ریگولر میں کام کرتے ہیں, یا آصف صاحب ہیں ورمی کمپوسٹ میں کام کرتے ہیں, امتیاز جہانگیر ہے, ڈاکٹر ظہور احمد بابا ہیں, بہت ہی بڑھیا کام کر رہے ہیں اور اس کو ایک ڈائریکشن دینا چاہتے ہیں اس آرگینک فارمنگ میں ود آرگینک انپٹس. تو میں تھوڑا آپ کی جانکاری کے لیے ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ جیسے ہم یوریا کی بات کریں گے, یوریا کا جو سائنٹیفکلی دیکھا گیا کہ اٹ از 270 ٹائمز مور ڈینجرس دین دا کاربن ڈائی آکسائڈ اگر ہم پولوشن کی بات کریں. دوسری بات, ابھی جو ہماری زمین ہے اٹ ہیز بیکم ویری سک. ابھی جب سے ہمارا فرٹیلائزر کا شروع ہو گیا, فرٹیلائزر بننا شروع ہو گیا, فرٹیلائزر یوز کرنا شروع ہو گیا, تو اٹ واز ڈیورنگ دیٹ ٹائم 1 کلو یوریا کے بدلے ہمیں 17 کلو اناج ملتا تھا. 2000 کی اسٹیٹسٹکس اگر آپ دیکھیں گے, 2000 میں 1 کلو کے بجائے آپ کو 8 کلو مل رہا تھا, اور آج جو ہے 1 کلو یوریا کے بدلے میں آپ 5 کلو بھی نہیں حاصل کر پاتے. تو دیٹ مینس کہ ہماری زمین اب اس اسٹیج پہ پہنچی ہے جہاں پر ہمارا ریسپانس جو ہے وہ بالکل زیرو ہے. So therefore we have to go for restoration of our land by using all biological eco-friendly inputs so that our land is reclaimed and we are able to give a good land to our young generation. جو ہمارے پرکھوں نے ہمارے لیے زمین رکھی تھی وہ بہت بڑھیا تھی, لیکن ہم اپنی زمین کو برباد کر رہے ہیں with all these agrochemicals, and we are misusing the agrochemicals, we are overusing the agrochemicals. اور اس زمین کو بچانے کے لیے ہمیں ایک بار پھر سوچنا پڑے گا کہ ہمیں زمین کا آرگینک کاربن, آرگینک میٹر یا باقی بایولوجیکل اسپیسیز جو ہے اس کو کیسے ہم ریچارج کریں تاکہ ہم اپنی ینگر جنریشنز کو وہ زمین دے سکیں اپنی وراثت میں. I appreciate all the participants جنہوں نے ابھی آپ کے سامنے انٹروڈیوس کیا اپنے آپ کو اور اپنے یونٹس کے بارے میں کہا. really happy to see this happening in Kashmir, and I appreciate the Vice Chancellor Sahab as well as the research and all other officers of the university for conducting such programs and giving a good feedback to the people. And soon, inshallah, next week I'll be speaking to the participants physically. I'll be there, inshallah. I think Ashfaq Sahab has kept one lecture for me. So with that, I thank you all, and I request to you all that I sign off because I have one meeting with the farmer. So thank you very much. Thank you very much, everyone. Thank you, Zargar Sahab, for your wonderful comments. Particularly जो हमारा जो misconcept था कि जो हम यूरिया जो हम केमिकल ये जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उससे हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, लेकिन आपने तो बिल्कुल उल्टा ही मतलब बोल दिया कि पहले हम 1 kg यूरिया में कितना फूड लेते थे, अब कितना लेते हैं. सो इट इज डिक्रीजिंग, इट इज शोइंग ए डिक्रीजिंग ट्रेंड. तो ऑर्गेनिक्स का जबरदस्त स्कोप है और आपकी लीडरशिप में मुझे लगता है ये प्रोग्राम अच्छा चलेगा.
I would like to join your lecture if you will be physically here. Thank you very much, sir, for giving your comments. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, sir, Professor Ahmad Zargar, sir, for giving the wonderful inputs to the participants, and we hope, sir, seeing you physically to delivering the lecture in next coming days, sir. Sir, one thing, sir, I would like to add, sir. Professor Ahmad Zargar, sir, has served as a director of research in SUCOST and many faculties and dean faculty. Sir, I would like to, sir, invite now, sir, Dr. Satnam Singh, who is, sir, online, sir, who is, sir, the senior entomologist, sir, senior entomologist RLS Faridabad. He has a specialization in, sir, molecular entomology, sir. Dr. Professor Harun Rashid sir, and the other dignitaries here, and Vice Chancellor, I think he has left. So it was very great to listening to him. It was always a great honor to be attached to the soil, because to brief you that I am also from Kashmir, and I have been working in PAE, Punjab Agriculture University, as a cotton entomologist from last 15 to 20 years. And my major focus has been on the safe use of pesticides, because the thing is that in this scenario, as we have seen recently in Sri Lanka, what happened that if we go completely organic at this time is a bit difficult. But as our friend Dr. Zargar said, that it has to be integrated. I was seeing the spray schedule for this Solent University, and I see that still there are 12 to 15 sprays there. But it is really great to listen that in Kashmir now they have switched over the term as integrated management. So pesticides are not bad. If I say, Dr. Borlaug said that if you put a complete ban on pesticides, the production is going to reduce by 50%, and the prices, they are going to touch the sky. So it is really not possible to eliminate the pesticides completely out of this. But the thing is that, important thing is, we have to go for the safe use of pesticide with judicious use of. I think since I have been studying in 90s, we have been listening about this term, judicious use of pesticides. But ultimately the problem is our communication to the farmers, and when the farmers, they have the problem, they have to go for this, they want immediate control. So there are many things which are to be covered in this, but I will highlight few of the things. As you know that the Kashmir, mainly due to apple, there is a huge use of pesticides around. Now it is the UP, so it is around 430 metric tons of technical grade is being used by this Kashmir Valley, and most of this is being pumped into the apple. And as you know, if apple goes to the, we go for the export and all that, there is a problem with the residues. There is a problem with this our consignments, as Dr. Zargar said, that the basmati consignment have been refused many times. So the thing is that ultimately, what I will be briefing in this in my lecture, which will be a detailed lecture to the participants, is about how we can ensure safe harvest through the limited or safe use of pesticides. But here I would like to say that we cannot eliminate pesticides from our plate, from our system. The only thing is what we can do is we can integrate it, and the option for integration is the biocontrol agents, the eco-friendly agriculture, the biodynamic agriculture. So we have to think of integrating trichoderma, trichogramma. There are many bioagents. The important thing for the entrepreneurs over here is that we have to see, because as you say that whatever we are getting it from Punjab or Rajasthan or Haryana, the thing is that we have to look for our strains which are from our Kashmir soil, which are viable over here. These strains are to be multiplied, and then only we can harness their maximum efficacy. So that is what it has to be. It has to be a link between the research lab of SCOSK and the entrepreneurs, so that the research labs of the SCOSK give some strains which are local
from Kashmir, which are identified from the Kashmir Valley, and then they are mass multiplied in the labs of these entrepreneurs, and then they give the maximum efficacy. So to conclude, I will say that in my lectures, I will be mostly speaking about the safe use of pesticides. I thank the organizers for giving me an opportunity. I have been working in detail on the safe use of pesticides. I have a lot of books that are published on the pesticide safety, and I was also sharing with Dr. Ishfaq that I have a book called A Safe Use of Pesticides, this book, and I have shared it many times with the Squash people, and it will be great if this is translated into Urdu language and then communicated to the farmers. With all, I hope that I will be getting connected online or offline for a complete lecture on this if time permits. And with all this, I thank the organizers for giving me an opportunity to share my views about the safe use of pesticides and to being the part of this very great training program that is on commercialization of bioagents to promote organic agriculture in Kashmir. Thank you so much. पार्टिसिपेंट्स यहाँ आएंगे, हम इन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी आइए और आपको भी यहाँ पे दिखाएंगे अपने लेक्चर में भी कि कैसे क्या हो. Thank you very much for providing an opportunity once again. Thank you, sir, so much, sir, for your valuable introduction. Now, due to the share, sir, we have the link validity, sir. So we will Professor T.H. Masudi, Registrar of the University. Dr. Ishfaq Abdi, the coordinator of the program, head KVK. Dr. Malik Makhtar, head Quality Control Laboratory. Dr. Zuhur Baba, scientists, faculty, students, the trainees. जो इस प्रोग्राम में आए आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ. यूनिवर्सिटी में ये सारे प्रोग्राम जितने थे जिसमें हमने MSME की तरफ से तक 500 प्रोग्राम जो है वो 2024-25 में उन्होंने हमें अलॉट किए थे और अभी तक हमने 18,000 यूथ को स्किल किया है और लास्ट ईयर हमारे पास 550 प्रोग्राम थे और तकरीबन 26,000 यूथ को स्किल किया और मैं मिनिस्ट्री ऑफ MSME का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इतने प्रोग्राम दिए और मैं उन तमाम जो हमारे साइंसदान यहाँ पे हैं, हमारे प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, टेक्निकल स्टाफ जो इसमें जिनने हिस्सा लिया कि उन्होंने बखूबी सक्सेसफुली इस प्रोग्राम को अंजाम दिया. लास्ट ईयर भी, इस साल भी और 2022 में भी. और इसकी वजह से हम लोगों में ये कामयाबी मिली कि हम 100 से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर सके जिन्होंने इस वक्त अपनी बिजनेस खोली है, एंटरप्रेन्योरशिप में आए हैं, कुछ फ्लोरिकल्चर में आए, कुछ इस डेयरी में आए, कुछ पोल्ट्री में आए. बहुत सारे लोग जो है जो यहाँ से जब उनको ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद वो सेटिस्फाई हुए ट्रेनिंग कि नहीं हमें तो अपना कुछ करना चाहिए. और इस ग्रुप में जो मैं देख रहा हूँ 2 तरह के लोग हैं. एक तो वो है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और दूसरे बिल्कुल ही नए हैं जिनके लिए बायो कंट्रोल वो शायद टर्म ही नहीं होगी. अगर देखा जाए 1975 तक हम यहाँ कोई दवाई नहीं छिड़कते थे. पूरे कश्मीर वादी में किसी जगह भी कोई दवाई नहीं थी, कोई पेस्टिसाइड नहीं था, फर्टिलाइजर नहीं था. लेकिन उसके बाद जो है दवाई और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देने शुरू हो गए और पूरी दुनिया में इस वक्त कोशिश की जाती है कि जैसे सरगर साहब अभी कह रहे थे कि बासमती में हमारा जो
पेस्टिसाइड रेजिड्यू लेवल है वो हाई आया है, तो कंसाइनमेंट्स वापस आ गई एक्सपोर्ट, क्योंकि पूरे यूरोप में और अमेरिका में अब वो पेस्टिसाइड रेजिड्यू लेवल टीपीटी पे चला गया, पार्ट्स पर ट्रिलियन। एक ज़माना था पहले पार्ट्स पर मिलियन में वो देखते थे, फिर पार्ट्स पर बिलियन में देखते थे, अब वो पार्ट्स पर ट्रिलियन में देख रहे हैं। हमारी मजबूरी भी है, पूरे मुल्क की ये मजबूरी है कि हमें अगर एक्सपोर्ट करना है तो हमें उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जाना है। और ये बायो कंट्रोल और ऑर्गेनिक फार्मिंग एक 5000 साल से पूरे हिंदुस्तान में जो प्रोसेस थी, ठीक है एक टाइम था कि यहाँ पे भूखमरी थी, खाना नहीं था, 1952 की जब बात करें, हालांकि पॉपुलेशन कम थी, अब खाना सबको मिल रहा है। अब हमें एग्रीकल्चर को एज बिजनेस देख रहा है, क्योंकि हमारी ताकत ही एग्रीकल्चर है, इस पूरे मुल्क की ताकत एग्रीकल्चर है। वो इसलिए है क्योंकि 70% लोग जो है वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे कश्मीर को उससे भी ज्यादा अहमियत इसलिए है कि जो चीज हम उगाते हैं यहाँ पर वो हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में नहीं उगाया जाता है, और जो चीज भी हम उगाते हैं अगर हम उन सबको ऑर्गेनिक सर्टिफाई करके सेल करें तो कीमत जो है वो 3 गुना ऑर्गेनिक की वो जो इनऑर्गेनिक से ज्यादा होती है। और अल्लाह ताला ने हमें ऐसा माहौल दिया है कि हमारे पास कुछ ऐसी फसलें हैं जो कुदरती तौर ही ऑर्गेनिक है, जिनको हम कोई स्प्रे नहीं करते हैं, जैसे अखरोट है, बादाम है, हमारे पास जैसे जाफरान है, एप्रिकॉट। खाली हम मजबूत, इवन जो हमारी पैडी भी निकलती है उसमें भी हम कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं करते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और वीडिसाइड यूज करते हैं। अगर ये 2 चीजें ना करें हम तो पूरे चावल को ही ऑर्गेनिक यहाँ पे करार दे सकते हैं। तो मैं जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो काम कर रहे हैं अभी इसमें, इस ग्रुप को ये मिनिस्ट्री ने इसीलिए कंबाइन किया है कि भाई इसमें एग्जिस्टिंग भी होने चाहिए और नए भी होने चाहिए। मैं उनसे इस्तदा करता हूँ कि वो जब यहाँ से ट्रेनिंग करके जाएंगे, कभी आप चुप पर बैठिए, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर हो इस वक्त, आपको पता है कौन सी चैलेंजेस आती है। हम लोगों को किताब से पता है, हम किताब से पढ़ के वो चैलेंजेस बताते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली वो चैलेंजेस देखते हो, हर रोज देखते हो, हर नए दिन आपको एक नया चैलेंज आता है कि भाई आप ये सोल्यूशन है, इसको कैसे करें, प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करनी है, कहाँ कहाँ पे कौन सी अड़चने आती हैं, कैसे करनी। मैंने देखा है कि कैसे सर्टिफिकेशन करते हैं। मैं कुछ लोगों का मैंने ऐसे ही देखा कि ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, पर जब फैक्चुअली देखा जाए तो वो एरिया पूरा ऑर्गेनिक होता नहीं है, लेकिन उनके पास कागज है, डॉक्यूमेंट है। हमारा ऑर्गेनिक होते हुए भी क्योंकि हमारे पास कागज नहीं है वो ऑर्गेनिक नहीं है। तो आप लोग खुद भी उठिए, जरूरी नहीं है जो हमने लाए हैं यहाँ पे उन्होंने लेक्चर देंगे यहाँ पे हम लोगों को या आपको सिखाने के लिए। आप जितने भी यहाँ पे हैं, अब आप भी 10-10 मिनट के लिए अपना लेक्चर दे दीजिए यहाँ पे, ताकि जो नए लोग हैं उनको समझ में आ जाए कि आपके पास क्या। नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई नया इनमें से तैयार हो जाता है इस ट्रेनिंग के बाद कि नहीं मुझे अपना कारोबार करना है, अपना बिजनेस करना है, बायो कंट्रोल में आना है, ऑर्गेनिक में आना है, तो आपका फर्ज ये बनता है कि उसको एनकरेज करना, क्योंकि उसके पास मार्केट नहीं होगा। तो आपने उसको एनकरेज करना है कि कोई बात नहीं है, अगर आप स्टार्ट करते हो तो 3 साल के लिए हम आपको मार्केट दे देंगे, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि जब जितनी आपकी प्रोडक्शन होगी आपकी डिमांड पूरी नहीं होती होगी। छोटे छोटे यूनिट है, कहाँ डिमांड पूरी होगी। यहाँ वर्मी कंपोस्ट की हम पूरी डिमांड नहीं कर पाते हैं, फिर भी बाहर जाते हैं तो दिल्ली और पता नहीं यूपी से वहाँ पे वो बैगों में वर्मी कंपोस्ट बेच रहे हैं, यही डिमांड ही नहीं पूरी कर पा रहे हैं।
तो अगर मैं नए जो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट भी हैं, वो आज से ही करें। मुझे अभी कुछ दिन पहले एक लड़का मिला, हैदराबाद का, NIT में पढ़ रहा है। आप यकीन करोगे कि मैंने उसको, उसने डिग्री पास नहीं की है, तो मैंने वैसे ही उसको पूछा, मैंने कहा कि तुम क्या करते हो? कहते सर मैं कुछ नहीं करता हूँ, एक्चुअली मुझे ऑफर आई थी तो लेकिन फिर मैंने छोड़ा, उसने कम दिया पैसा, फिर मेरे को अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन 85 लाख मेरे को पर एनम में अपना काम करता हूँ। वो कुछ पैकेज है उसके पास, उसके थ्रू कंप्यूटर, उसके पास डिग्री नहीं है अभी, वो पढ़ रहा है, लेकिन 85 लाख कमा भी रहा है। और अगर आप उसको देखोगे ना, मैंने पहले सोचा कि पता नहीं क्या होगा, कहीं लेबर शेबर होगा। सो आजकल अपॉर्चुनिटीज हैं, उस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करते थे। मुझे याद है, माय फादर यूज्ड, मेरे वालिद साहब मुझे हमेशा बोलते थे कि आपके पास कार है। जब मैं फॉरेस्ट ऑफिसर था उन दिनों ये लोन कार वार नहीं होती थी। अगर उन दिनों हमारे पास भी होती, हम भी इसका फायदा उठाते नहीं थी। इस वक्त अपॉर्चुनिटीज है, इसलिए सबके पास कारें हैं। अगर बैंक दूसरे दिन बंद कर देगा, मैं देखता हूँ कितनी कारें उड़ जाएंगी सड़कों से। तो इसी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, फाइनेंस इजी है, आप उसका फायदा लीजिए। देखिए 29 प्रोजेक्ट हैं, वो आएंगे, आपको यहाँ पे लेक्चर भी देंगे, बताएंगे। एक अलग ही एक प्रोजेक्ट है जिसमें तकरीबन 150 करोड़ है उसके लिए, वो खाली ऑर्गेनिक्स के लिए है। और अल्टरनेट सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर उस प्रोजेक्ट का नाम है HADP में। और अगर आप HADP के किसान साथी पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ अप्लाई करेंगे, उसमें आपको सब कुछ फ्री मिल जाएगा। एग्रीकल्चर असिस्टेंट तो आपके घर पहुँच जाएगा। चलो यार कोई तो हम, क्योंकि हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स डाल दीजिए उधर, दे विल फंड यू फॉर दिस प्रोजेक्ट। ये हो गया सैचुरेट। लास्ट ईयर एक भी एप्लीकेशन नहीं हुई थी इसकी क्लियर। मशरूम भी सैचुरेट हो गया। सबसे ज्यादा लीड कर रहा है सर। ये तो डिस्ट्रिक्ट पे डिपेंड करता है, किस डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा। अब कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे हुआ ही नहीं है, तो वो डिपेंड्स। अनंतनाग सैचुरेट हुआ है, जम्मू सैचुरेट हुआ है, पूरा इस प्रोजेक्ट साइट ही बंद हो गई सारे इंडिया। तो ठीक है, सेंटर फॉर नेचुरल, फिर भी नेचुरल फार्मिंग में काफी फंड्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है, उनके अंदर एक स्कीम है नेचुरल फार्मिंग के लिए, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ बंद हो गया, वहाँ तो नहीं बंद हुआ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ खाली ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के लिए आप मत ले लीजिए। अब आए हो, आपको मैं बताऊँ कि आप गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ MSME, आप एक फॉर वन पर्सन वी आर स्पेंडिंग 8,000 पर डे पर पर्सन। ये मैं आपको बताऊंगा, आप देखिए कितना लिबरल है। 40,000 फॉर 5 डेज की ट्रेनिंग होती है, ये 1 वीक ट्रेनिंग कभी 6 दिन भी चलती है, लेकिन जनरली 40,000 रुपया हम आप एक ट्रेनिंग पे खर्च कर रहे हैं। तो जरा इस 40,000 का हिसाब ले लीजिए, अच्छी तरह इसको आप सीखिए सब कुछ। अगर आपको लगता है कि हम में कमी रह गई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम 3 दिन और एक्सटेंड करेंगे किसी नए एक्सपर्ट। अगर आपको लगता है कि इसमें वो एक्सपर्ट नहीं है जिनको आप जानते हो, जो ज्यादा अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम उनको भी लाएंगे। आप अपना लिस्ट दीजिए, अपना फीडबैक दे दीजिए। तो ट्रेनिंग ठीक है, आपको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग आपको करवानी है। विजिट भी अगर ये कहीं पे वो तो करेंगे ही, ठीक है ना। अगर आपको कहीं लगता है कि कोई सेंटर बहुत अच्छा है जहाँ पे ज्यादा अच्छा से, हम वो विजिट भी कराएंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी, मेरा नंबर है, आप मुझे बोल सकते हैं, कि फीडबैक दे सकते हैं, कोई कमी है, कुछ है, इशफाक साहब को बता देंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम सब कुछ अच्छी तरह इम्प्लीमेंट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Thank you, Director Sir, for giving the detailed information about this training program, about all the background, what the government is doing for the trainees and how do they want to be the employer, not the employees. This is the opportunity for you
to just take their technical and critical guidance and start up your own and be independent financially. So इसे आप लोगों की सिंसियर की जरूरत है. ट्रेनिंग तो हमने कराई है ना, आपको जहाँ जहाँ कमी लगेगी जैसे आपने डायरेक्टर साहब ने बता दिया, आपको पॉइंट आउट करना है ना. आप जी साहब इसके कोऑर्डिनेटर हैं, बहुत काबिल. हम यहाँ पे एक पीसी माने जाते हैं, इन्होंने अपने जो केवी के है ज़बरदस्त रेवोल्यूशन लाया है वहाँ पे. तो हमें पूरा भरोसा है कि आप जी साहब इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को बखूबी ये अंजाम देंगे, कल्मिनेट करेंगे. और मुझे उम्मीद है कि आप में से हमारा ये जो है, अगर हम सक्सेस फिर इस प्रोग्राम की देखेंगे, हमें वो सक्सेस तब मिलेगी जब आप में से कोई इसमें से 1, 2, 3, 4, 5, मैं तो चाहूँगा सब लोग है ना एंटरप्रेन्योर बन जाए. मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ क्योंकि हम देखिए, मेरा कभी कभी अपने ऑफिसर से भी थोड़ा सा एक सवाल होता है जब भी कोई एंटरप्रेन्योर खड़ा होता है कि वो बोलता है मेरा 1 करोड़ टर्नओवर है ना, सपोज 2 हेक्टेयर में, 5 हेक्टेयर में. तो मैं अपने ऑफिसर से भी सवाल करता हूँ कि भाई हमारे पास भी तो लैंड है, हमें इतना रेवेन्यू क्यों नहीं. उसका वजह यह है कि आप लोगों को एक फ्रीडम होता है पैसा खर्च करने का, तभी आप प्रॉस्पर भी करते हैं. सरकारी कामों में थोड़ा सा अड़चनें होती हैं. तो आई वुड लाइक दैट एट लीस्ट 4-5 मिनिमम एंटरप्रेन्योर्स विल कम फ्रॉम दिस प्रोग्राम. वही इस प्रोग्राम का असली सक्सेस होगी. Very good afternoon to everyone. It's my honor and pleasure to extend a vote of thanks on this wonderful occasion, sir. On behalf of Krishi Vigyan Kendra Ganderbal, I would like to express heartfelt gratitude to all who have contributed to make this event a grand success, sir. I would also like to thank our Honorable Vice Chancellor, SCOS Kashmir, Professor Nazir Ahmed Kanai, sir. Despite his very busy schedule, he joined this meeting, sir. We are very thankful to him, sir. I would like to thank our today's guest of honor, Professor Harun Rashid Naik, sir, who is also a nodal officer of MSME. Thank you very much, sir, for your presence. I would like to thank Registrar Dr. T.H. Masoodi, sir, for his presence. A special thanks goes to our sponsors of today's program, MSME, without whom this program was not possible. I would like to thank everyone present here. I would like to acknowledge the hard work and dedication of the organizing committee, whose tireless efforts behind the scene have ensured the smooth functioning of this event. Last but not the least, I would like to thank electronic and print media as well as the participants of the training program who made this event more lively and successful. I once again thank you all for your presence and participation. Thank you very much. आफ्टरनून सेशन में पहले दिन के आफ्टरनून सेशन में आपका भी खैर मकदम है. ये जो पहला टेक्निकल सेशन आज शुरू होने वाला है, उसमें उस सेशन के स्टार्ट होने से पहले थोड़ी सी हम इंटरेक्शन करेंगे, क्योंकि इसमें जैसे आपको पता चला मॉर्निंग इनॉग्रल सेशन में कि इसमें 2 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं. एक दूसरे टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स है कि जो एक तो ऑलरेडी वो इस सेक्टर में है, दूसरा फील्ड लेवल पे भी उनको बहुत सारा तजुर्बा है और वो इम्प्लीमेंट करते हैं. जो हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की जो स्कीम्स है उनके बारे में उनको पता है, और जो इनपुट प्रोडक्शन में क्या क्या ज़रूरियात है उनको पता है. उससे आपको थोड़ा एक आइडिया मिलेगा कि आपको आइंदा कैसे शुरुआत करनी है. अगर आपको इस सेक्टर में कोई एंटरप्राइज बनाना है तो उसमें आपको क्या करने की ज़रूरत है. तो इसके लिए मैं सबसे पहले मदु करूँगा अपने जो आपके कश्मीर वैली के मशहूर और सबसे जो है जो छाए रहते हैं सोशल मीडिया पे मिस्टर इरशाद साहब, तो वो 5 मिनट यहाँ पे पहले इसके बारे में बताएं कि कैसे वो करते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे उन्होंने काम किया है और क्या क्या किया है और किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, और आप लोग उसको नोट डाउन करेंगे. ठीक है ना. तो इरशाद साहब आप अपनी एक्सपीरियंस को पहले शेयर कीजिए और हमें बताएं, क्योंकि आपको ओवरऑल पहले मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ. उनको नेशनल लेवल पे एक अवार्ड मिला है, तो उसके लिए सब इनको ये मुबारकबाद देंगे. हमारी तरफ से भी स्कॉस कश्मीर और के गांधरबल की तरफ से भी उनको मुबारकबाद.
اور کیونکہ یہ یوتھ آئیکن ہے فارمنگ میں تو یہ اپنی ایکسپیرینس سے شیئر کریں گے ارشاد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ارشاد احمد ڈار. میں ایک اپنا یوٹیوب چینل بھی چلا رہا ہوں, فیس بک کا چینل بھی, اس کا نام ہے کشمیر ایگریکلچر اینڈ آرگینک فارمنگ. لگ بھگ ووت مےٚ 2010 پٮ۪ٹھ آرگینک کران. آرگینک کیٛازِ کوٚر بہٕ اوسُس اَکہِ دۄہ یِتھَے کٔنۍ تھوڑا اوس مےٚ سوشَل میٖڈیاہُک زیادَے پَہمَتھ اَتھ وَنان کٲشِرۍ پٲٹھۍ. مےٚ وٕچھ اَکہِ دۄہ اَکھ جٔرنَلِسٹ لیکھان دوٚپُن یہِ پوٗرٕ دُنیا چھُ وٕنکٮ۪نَس اَتھ تھرٛٹَس منٛز چَلان, تٔمِس چھُ یہِ کیمِکَل تہِ پَتہٕ سوٗنٛچ مےٚ یہِ کیمِکَل یوٗز گژھِ اِنسانَس منٛز مُختلِف بٮ۪مارِ یہِ کیٛازِ چھُ گوٚمُت ایز اَ فارمَر اوسُس پَتہٕ پٮ۪ٹھ سونٛچان. پَتہٕ باسیو مےٚ نہ کَتٮ۪ن تامَتھ چھِ أسۍ تِلیمٕتۍ سماج ختم کرنہٕ خٲطرٕ ایز اَ فارمر. بہٕ چھُس وَنان پنٛنِس پانَس کہِ اٮ۪نٹَرپرٛینَر, مگر ہاں یہِ چیٖز چھُس بہٕ وٕچھان پَنُن اٮ۪گرِکَلچَر چھُس بہٕ سَمجھان پَنُن بِزنِس. دِل و جان سۭتۍ چھُس محنت کران بَڑٕ چٹ پٹ. اگر تُہۍ وٕنکٮ۪نَس مےٚ ییٚتہِ اور وٕچھِو لگ بگ آسہِ چھِ کرٛیکٕس کھۄرَن. تہٕ بہٕ چھُس مطلب آز چھُ وَنٛدٕ حظ, آز تہِ چھُس باسان زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ. ریٖسٮ۪نٛٹلی کوٚر مےٚ اِنٹرٛڈیوٗس کالا زیٖرا پنٛنِس زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ. دوٚپُکھ آرگینِک بہٕ کَرٕ کالا زیٖرا کیٛازِ کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ لُکھ چھِ واریاہ زیادٕ سٕپایسی یوٗز کران. یا مےٚ چھِ بیٛاکھ یَوٕ منٛگُن مےٚ تقریٖباً رۄپیَس 5-6 ساسَن سیٖڈ لیٚدٕر تہِ باغ سُہ تہِ. آرگینِک کیٛازِ ووت اَسہِ اَتھ پٮ۪ٹھ کیٛازِ ووت نہَ کہِ آرگینِک نیشنل مطلب انگریٖزی ناو آرگینِک. اگر أسۍ وٕچھو سٲنۍ مٲلۍ سٲنۍ باپ تِم ٲسۍ کران یہِ نیچرل, تِمن ٲس زٔمیٖندٲری. اگر تِہُنٛد زٔمیٖندٲری وٕچھِو تِم ٲسۍ واریاہ پرٛافِٹَس منٛز دِن وٕنکٮ۪ن کہِ وقتہٕ مُطٲبِق. تِم کیٛازِ ٲسۍ پرٛافِٹَس منٛز تۄہہِ زٔنۍ اَصٕل زَنان میٛانہِ کھۄتہٕ واریاہ اَصٕل کہِ اگر وٕچھو تِمو پَرنٲیِکھ أسۍ ییٚتہِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ, خانٛدر تہِ کوٚرُکھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ, بٔڑۍ IAS آفِسَر تہِ بَنے اَڑٮ۪ن زٔمیٖندارَن ہِنٛدۍ شُرۍ. تِمن سورُے سُہ بیک تِہُنٛد وٕچھو سُہ پوسٹُک کَتہِ اوس یِوان, سُہ اوس یِوان زٔمیٖن پٮ۪ٹھٕے. وٕچھو تِمن کیٛازِ اوس بَچان یہِ تہٕ میٛانہِ ایز اَ فارمَر میون سونٛچ مےٚ اَتھ کَتہِ تِمن اوس نہٕ کٕہٕنۍ خرچہٕ گژھان پیسٹِسایڈَس پٮ۪ٹھ, کھادَن پٮ۪ٹھ اوس تِمن کانٛہہ خرچہٕ گژھان, باقٕے چیٖز لیبر اوس تِمن تیوٗت لگان کینٛہہ. سٲری بٲژ ٲسۍ اگر تِم کانٛہہ آسہِ ہا مُلٲزِم تہِ آسہِ ہا کانٛہہ باقٕے, مگر ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ کٲم ٲسۍ ہا کَران تِم ٲسۍ نیران سٲری برادٔری سان کٲم کَرنہِ. وٕنکٮ۪س اگر بہٕ وٕچھان سُہ اوس میٛٲنۍ یِمن بایَن وٕچھان وٕنکٮ۪ن کِس وقتَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ رُہُن کَڑنُک موقعہٕ چھُ آسان یا پوش تُلنُک موقعہٕ چھُ آسان یا دانہِ لوننُک موقعہٕ چھُ آسان, ژوٗنٛٹھۍ والنُک, تُہۍ وٕچھِو تَمہِ ساتہٕ کِرکٹ گراوُنٛڈَس منٛز ٲسۍ نظر ترٛاوان. یہِ چھُ مےٚ تجرُبہٕ کوٚرمُت اَتھ رِسٲرٕچ کوٚرمُت اَتھ پویِنٛٹَس پٮ۪ٹھ کہِ 22 لٔڑکہٕ چھِ آسان بیٹَس گِنٛدان, 2 ہَتھ لٔڑکہٕ چھِ تِمن تماشہٕ آسان وٕچھان. کَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ کرٛوٗشَل ٹایمٕز زٔمیٖندٲری چھِ آسان اور بِہار چھِ اَسہِ آسان ژھانڈان تھیٚپہِ تھیٚپہِ. بہٕ چھُس مےٚ تہِ چھِ تقریٖباً گژھان مےٚ چھِ فیملی لۄکٕٹ, مَدر چھَم مےٚ گٔے ریٖسٮ۪نٛٹلی بہٕ چھُس لۄکُٹ اکھ نٔر, گوٚو مےٚ چھُ لیبر ضوٚرتھ, تقریٖباً چھِ 2 لَچھ رۄپیہِ پیٚوان ؤرِیَس لیبر ضوٚرتھ, مےٚ چھِ مجبوٗری. وۄنۍ اگر مےٚ اَصٕل آسہِ ہا برادٔری سان آسہِ ہا گرِ سٲری فیملی یکجاہ کران, پَتہٕ اگر لیبر تہِ لگاو گوٚو سُہ پونٛسہٕ بچاو مےٚ سُہ رۄپیَس 2 لَچھ. اور بہٕ چھُس کوٗشِش کران کہِ سُہ پونٛسہٕ کِتھ کٔنۍ بہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ وٕنکٮ۪نَس سونٛچ ترٛاوان. وٕنکٮ۪نَس کیٛازِ چھُ وۄنۍ زٔمیٖندارَس بچان, وٕچھ حظ تُہۍ وٕچھِو پیسٹِسایڈ کۭتیاہ چھِ گژھان اِستعمال, کھادٕ کۭژاہ چھِ اِستعمال گژھان. اکھ بٮ۪مٲرۍ رَٹنہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ اکھ دوا کران اِستعمال, تَمہِ سۭتۍ چھِ بیٛاکھ بٮ۪مٲرۍ گژھان, پٮ۪وان چھُ بیٛاکھ دوا کران اِستعمال. گوٚو أسۍ چھِ ترقی یافتہٕ گژھان, یُس اِنسان لاسٹ پَتہٕ نٔتیٖجہٕ چھُ یِوان اَسہِ چھُ باسان اَسہِ آے باغَس رۄپیَس 10 لَچھ, مگر ییٚلہِ اِنسان لاسٹَس چھُنہٕ پَتہٕ ڈیری پَنٕنۍ بَناوان, مینٹین چھُ تھاوان سُہ ڈیری, تٔمِس چھُنہٕ تیوٗتاہ نفع آسان کِہیٖنۍ. تٔمِس وَسہِ نہٕ بِچارَس سُہ کِسان کرٛیڈِٹ کارڈُک سُہ بیکُک پونٛسہٕ چھُ مےٚ باسان نَکھٕ وَسہِ تٔمِس زٕہٕنۍ نہٕ. یِم چھِ یِم چیٖز. وۄنۍ یِم چیٖز کِتھ کٔنۍ کَرو أسۍ روٹ, أسۍ کِتھ کٔنۍ یِمو بیٚیہِ پنٛنِس طریٖقَس پٮ۪ٹھ. مےٚ باسیو ساروی کھۄتہٕ بیسٹ اکھ پروگرام کوٚر آز سُپاسُن آرگینِک فارمَن پٮ۪ٹھ, ییٚتہِ مےٚ ٹرٛینِنٛگ پروگرام چھُ کوٚرمُت. کیٛازِ بہٕ چھُس ییٚتہِ پروڈَکٹ اکھ ایز اَ فارمَر, مےٚ تہِ ییٚتہِ ٹرٛینِنٛگ وغیرہ یِمو سۭتۍ چھُس بہٕ تھاوان بیٚہوان سینٹرَس پٮ۪ٹھ, اَصٕل کٲم چھِ یِم تہِ کران. اَسہِ چھِ اَمہِ خٲطرٕ ضروٗری, بہٕ چھُس کران مٹر, رُہُن, باقٕے چیٖز. آپ وہاں سے سیمپل لے لو, بالکل میں مطلب نہ ورمی کمپوسٹ استعمال کرتا ہوں, کچھ بایو فرٹیلائزرز یِمن منٛز بیکٹیریا چھُ آسان, لایو بیکٹیریا, یِم چھُس بہٕ پنٛنِس اپنے کھیتوں میں استعمال کر رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ بچ رہا ہے. بہٕ چھُس نہٕ کران زٔمیٖندٲری ورٲے کٕہٕنۍ تہِ کٲم. شکر اللہ کا, میرے پاس اچھا مکان بھی ہے, گاڑی بھی ہے, مطلب لون بھی میرے پاس کوئی نہیں ہے. ابھی مجھے کچھ HDP میں ایک پروجیکٹ مجھے الاٹ ہوا ہے, یہی ورمی کمپوسٹ پہ قریب 50 لاکھ روپے کا.
अब वो स्टार्ट मुझे बिजनेस करना है। ऑलरेडी मेरा चल रहा है अपना वर्क कंपनी से छोटे लेवल पर, तो मुझे अपने यूज़ के लिए होता है, खुद की ज़मीन के लिए यूज़ करना है। ये चीज़ इसका नहीं अगर कि वो रिसेंटली उस पर ट्रेनिंग मैं कर रहा था उधर नेशनल सेंटर ऑर्गेनिक नेशनल फार्मिंग। खुदा की अल्लाह की कसम, अगर आप यकीन करोगे या ना करोगे, जब मैं वहाँ फील्ड पे गया उनकी ज़मीनें मैंने देखी, 30 ज़मीन बासा पहाड़स पे जिसमें ग्राउंड लेवल पे बना अल्लाह ताला मुझे शुक्र सन ज़मीन तीसा असल तीसा फर्टाइल अगर इंसान खोट कर तक मेरी ज़मीन मतलब पान खोट ताकि वन गई वर्ष 7 डीप हो जाएगा आपका पेड़। इतनी अच्छी मिट्टी है वहाँ पे, फर्टाइल मैंने उसको बना के रखा और वो वहाँ पे मतलब बस कुछ बंजर ज़मीन कर अवश्य ऑर्गेनिक और अवश्य कहूँ कि फ़र्ज बना आपका फ़र्ज ही बनता है कि आप जब यहाँ से ट्रेनिंग करोगे आप दूसरी जगहों पर जाओगे, अपने गाँव में बताओगे लोगों को हमें क्यों करना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक एट ए टाइम हम ऑर्गेनिक पे आएंगे, ये भी इम्पॉसिबल है। धीरे धीरे आना है। कुछ चीज़ इस पर हम एट ए टाइम आ सकते हैं, जैसे कि वेजिटेबल हमारा सैफरान है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक ही है। अब कैसा करना है जो हमारा, मैं उसको एक मुसीबत समझता हूँ, जो हार्टिकल्चर की बीमारी हम पे लगी, हम एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट कर रहे हैं हार्टिकल्चर में। ये एक बीमारी लगी हमारे दिमाग में, इससे पैसा आ जाएगा। जब मैंने बोला ना आपको, जब हम लास्ट में कर रहे हैं ना हिसाब कैलकुलेशन इतना होना जीरो होता है, अब उससे क्या हो गया, 2 फार्मिंग हमें डिस्ट्रॉय होने को जा रहा है हॉर्टिकल्चर से। वो एक तो ये है सेरिकल्चर और एक बी कीपिंग। लास्ट आपने देखा होगा शिपिंग में हल्ला मच गया कि फिर कृषि वालों ने कहा कि हमारे कीड़े मर गए। जब वहाँ पे फिर सेंटर का टीम आया, मैंने उसको बढ़ चढ़ा कर सोशल मीडिया पर किया है कि फार्मर्स को ये हो गया, फार्मर्स को वो हो गया। फिर सेंटर का टीम जब आया, उन्होंने जो उसको कीड़े को फिर टेस्ट किया है लैब में, ये वो में उसके पीछे पूरा पड़ा कि क्या हो गया आखिर कीड़ों को। मुझे रिपोर्ट की पेस्टिसाइड आप देखो आप कहाँ पे, अब देखो वही खाली पेस्टिसाइड ज़मीन में जो आप वो पानी पेस्टिसाइड करते हैं, वो पेस्टिसाइड हम देते हैं वो पानी नदियाँ नाले हैं उसमें भी जाते हैं। जो पानी हम जब अपने खेतों में भरते हैं, चाहे धान में भरते हो, वेजिटेबल्स में भरते हैं, वेजिटेबल फील्ड्स में, उसमें भी बीमारियाँ लगती हैं। फिर अब देखो कि कहाँ फंस गए हैं। अच्छु बासान ऐसी मौसम अगर अच्छी तिक्का फंसान सानी जंग गसन शायद पगह यल कि इंसान को सोचन पगुक न कि उजिम। हम सोच रहे आज हमें पैसा आ रहा है हार्टिकल्चर से, लेकिन ये हमें कोई नहीं समझा रहा है कि आप कहाँ फंस रहे हो। अच्छे फंसा चीज़ का समान जहाँ पे हमें हार्टिकल्चर लगाना चाहिए, जिस खेत में लगाना चाहिए वहाँ पे लगाओ, अच्छी बात है। लेकिन यह शुड है ये हार्टिकल्चर तक पुलिस यानी कि मैं बस ब्या अगर बे मजहब अल्लाह ताला से नेचर छेड़छाड़ करना कोई कट तमत नेचर खत्म करने खतर। ती अगर वो अगस्त पे शीन 1 दिसंबर तक पे बिग ड्राई स्पेल अगर ती वनकन ती त्रो फील्डस कुन नजर वनकनस तक कहें जाम खसीत गसान कुछ सब कि ना प्रैक्टिकल ही कहा कि वजह क्या है, वजह को ये चीज़ कि ये साथ समाज हवास में बैक्टीरिया ये केमिकल बाकी तो कहना खत्म दूर गना साइंटिस्ट वनकस क्लाइमेट चेंज मानान कह कि तिथु शुक्र अल्लाह ताला ती मौसम तीसा दूर ती बाकी चीज हर कम मिलान मगर क्या थामस कमी और ये कमी कर उसके दूर पाने करें चाहे सेंटस जमींदार एज अ बरादरी मतलब फ्रेंडली मतलब कर समाज बनाने वो बस ये आएगा और आपके पास पैसे भी बहुत आएगा। तो मैं सोचूं कि हार्टिकल्चर खाली यहाँ पे लोगों को बताए कि आप क्यों कर रहे हो फार्मिंग, वो कहते हैं पैसे के लिए, पैसा खुद ब खुद आ जाएगी। आप सोचो कि ये मेरा बिजनेस है, मेरा पेशा है, पहले हमें अपने आप को अपने माहौल को बचाना है। हिंदुस्तान से क्या इजमान बना कि नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग में रिसेंटली गया प्राइम मिनिस्टर को मैंने भी चीज़ बोला है वहाँ पे इंतजार के सेंटर को बहुत पैसे दे रहे हैं नेचुरल ऑर्गेनिक क्यों करें जो मैं बात की सारी को दमाश क्यों नहीं जाती वो डायरेक्ट असर एस्पेक्ट हमारा जितना भी अभी मार्केट में आ रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खान पीन हमारा वो सारा बाहर से आ रहा, आपका चावल बाहर से, आपका स्पाइस बाहर से, आपका तेल बाहर से, आपका ये चीज़ बाहर से। फिर देखिए आप सिक्किम का रिपोर्ट रिसेंटली
4100 पेशेंट्स कैंसर पेशेंट यहाँ पर रजिस्टर किया इस साल तिमो ती कर तथ पे रिसर्च की कैंसर वगैरह बाकी चीज किडनी फेल हम कत तिम ती वन यह इंसान सु खेन चेन गसान वनकन यह हसा गलत और ये इंसान सुन खेन चेन अगर कह असल बनाए सह बनाए फार्मर सह बनाए जमींदार तवे बह वन कि बह कर आर्गेनिक मे गर थोस जमींदार गो ये कि सह कर हॉर्टिकल्चर ना मे नश गो जमींदार सह चीज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कर अप्लाई IFS यानी कि मे गर अगर तुम मोन गर यू मे गो गर मे कॉकर गर मे दान जमीन मे कून मे वेजिटेबल इवन कि जब तो नून बह गर अना नून और मे कर इंट्रोड्यूस जब कर दायम गर अना पहल कर पगह किस खतर यानी कि अल्लाह ताला बच्चन इन वाजन जनरेशन गस पगह जाने काबिल पर गास तो क्या दफन दिमो क्या सानी खतर करूँ तम से पहुँचने खतर पीछे वो पैसे के पीछे पड़ा है हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा हम तुले हैं। इरशाद साहब तुम तो सिर्फ आपने बताइए कि आपको क्या लगता है किस में हमारा स्कोप है। पहले अगर कोई हमारा यूथ है एंटरप्रेन्योर है उसको किस में स्कोप है कि आपको क्या लगा जो आपने इतने सालों काम किया है कि किस सेक्टर में हम पहले पहल कर सकते हैं। एक तो हो गया हमारा इनपुट प्रोडक्शन। मैं हर एक युवा को यही मैसेज देता अगर इमीडिएटली कोई रोजगार चाहिए वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आए फिर आप उसमें फिश फार्मिंग करो डेयरी करो शीप करो जो भी आपको मर्जी में गाइड करना गाइड करने हर एक तजुर्बा मेरे पास जितना मेरे पास तजुर्बा है मैं उसको उतना बता रहा हूँ और जितना मुझे पता नहीं मैं दूसरे लोगों को कांटेक्ट कर रहा हूँ चाहे साइंटिस्ट से मुझे रब्ता करना पड़े या दूसरे फार्मर से उसको बता रहा हूँ। मैं उनसे गड़े कि मैं खुद कोई और बिजनेस नहीं कर रहा हूँ खाली मेरे पास एग्रीकल्चर ब्रांड सो मेरा 2 ब्रांड चल रहा है अपना एक तो मेरा जहलिम ऑर्गेनिक चल रहा है और दूसरा चल रहा है नेशनल सैफरन ब्रांड और शुक्र अल्लाह का कि मैं दूसरे को भी रोजगार दे रहा हूँ। रिसेंटली बोला जो मेरा मतलब इसमें है ना ये क्या बोलते हैं सीजनली 1.5 लाख रुपए को मैं मजदूरों को देता हूँ तो अगर कोई काम करे बेरोजगारी। इरशाद साहब एक चीज इनको बताइए कि जैसा आपके पास 2 ब्रांड्स है जहलिम एग्रो है एक दूसरा है ऑर्गेनिक एंड नेशनल सैफरन ब्रांड। जहलिम ऑर्गेनिक में एक तो आप उसमें कौन सा प्रोडक्ट आप यूज करते हैं। जहलिम ऑर्गेनिक में मेरा पल्सेस आता है ड्राई वेजिटेबल्स जितने भी उसमें आता है एक सारा उसमें मैंने ब्रांड करके रखा है। उसमें आपका एक प्रोडक्ट था शायद पीस जो आप ऑफ सीजन पीस जो आप बनाते हैं उसका इतना ज़्यादा स्कोप है यहाँ पे कि उस टाइम पूरे इंडिया में कहीं पे पी नहीं होती है और 1 kg पी में मुझे लगता है आपको 80 से 100 रुपए शायद यहीं पे मिलता है। मतलब प्रोडक्ट्स पर बिजनेस करान और खान चलन प्रोडक्ट अत पे चलो तो वारिया ज्यादा असल सुबह वनान तो और मैं अभी सोच रहा था बाहर का एक लड़का है वो इंजीनियर है सर उससे मैं रब्ता कर रहा हूँ कर चावलस पे काम मैं वो तमिस वन तो मैं मैं जो मेरा अपना चावल है SR4 में भी उसको पैकिंग कर रहा हूँ तो मैं लोगों को दे रहा हूँ 2-5 किलो जितना तो जिम से सोन एग्रीकल्चर असल वो शुक्र अल्लाह मगर हमारी जो प्रेजेंटेशन है एग्रीकल्चर का होना चाहिए उस तरीके का नहीं है। हमारा पैकिंग और प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए हमारा ये सोचना चाहिए हम इसमें कैसा वैल्यू एडिशन करें कितना गार्लिक निकाल रहे हैं फिर देखो आप गार्लिक पे कितना हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं कुछ भी नहीं 0% भी नहीं है। आप देखो हम कितना पी निकाल रहे हैं अगर मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की बात करूँ करीबन 22 करोड़ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा पी निकाल रहे हैं 22 करोड़ करीबन 21 करोड़ का हम गार्लिक निकाल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से। फिर आप उसमें देखो कि वैल्यू एडिशन का हम क्या कर रहे हैं जो हमारे कास्ट के स्टूडेंट्स हैं ये भी कश्मीर के हैं इनको सोचना है कि अगर इरशाद कोई प्रोडक्ट बना रहा है गार्लिक बना रहा है पीस बना रहा है वेजिटेबल बनावा कहाँ चीज बनावा ये टेक्निकल स्टूडेंट ये गसे जिसको सोचे कि बना है प्रोडक्शन वैल्यू एडिशन तमिस ते बने रोजगार मैं किस कंपैरिजन इट सोरे ड्राई कना भाई बैटरी कना भाई या रॉ मटेरियल कना वो मैं पता कि ये टू गो तैयार ये बची में बेन गई में तैयार की शात करा वैल्यू एडिशन में पता ये है गसे असल पैकेजिंग असल शेप में मार्केट्स में तो हमारा क्या डिमांड बढ़ेगा हमारा एग्रीकल्चर एक सस्टेनेबल यही सस्टेनेबल बनाने का यही तरीका है। सही बात।
देखिए इरशाद साहब ने आपको मोटी मोटी बातें बताई, अपनी एक्सपीरियंस शेयर की, इनके साथ और भी बात सबके साथ जो भी है, लेकिन आज जो इन्होंने बताया वो बताया कि मैंने कहाँ स्टार्ट किया, क्या क्या कर रहा हूँ और स्कोप किस किस चीज़ में है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बताई कि जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं सर ये है पी है, इसको मैंने ऑर्गेनिक लेबल लगाया है, पीजे सेटिस्फाइड है ये। साल में मुझसे 3 बार ये सैंपल से रहे सर, फिर उसको टेस्टिंग कर रहे हैं, फिर ये मुझे रिपोर्ट दे रहे हैं। ये मुझे 1 kg में बेच रहा हूँ इसको 150 रुपये। 150 कितना खाली रात नहीं होती। देखो कितना स्कोप है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में। यही भी आप अभी मार्केट में 20 रुपये बेचते हैं, लेकिन अगर ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हो, ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड हो और उसकी सर्टिफिकेशन हो तो 20-30 रुपये से लेके ये 100 से 150 रुपये तक इसका प्राइस 1 kg का जाता है। तो सिंपल सी बात है कि आप अगर कोई एंटरप्रेन्योर इसमें आ जाए कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ही अगर वो करे तो उसमें वो अपने साथ जोड़े लोगों को और वो कितना बड़ा एंटरप्राइज बना सकते। ये मिर्ची है, ये लगता है आपको आर्टिफिशियल है, लेकिन आर्टिफिशियल नहीं है, ये मेरा घर का है। आप मेरा फेसबुक देखना, कश्मीर एग्रीकल्चर फार्मेशन, मेरे करीबन 80,000 से ज़्यादा फॉलोवर है। इसमें मेरा मतलब जब भी मैं कोई बीज उगाता हूँ बोलता हूँ मैं इस तरीके से उगाऊंगा, जब मैं कोई हार्वेस्ट करता मैं इस तरीके से। आप देखना उस पर मैंने सारा डिटेल फार्म पे बता रहा हूँ, दूर से लोगों को, और एक चीज़ दिखाऊंगा आपको। ग्रीन फिश मटर वो ते पल्सेस मटर गार्लिक और अलग लड़ यूत थी मतलब वर्मी कंपोस्ट तूत असल। हालांकि पता फास्फोरस पोटाशियम नाइट्रोजन कम 1.6 क्या था, मगर कर ऑटोमेटिकली जमीन मज नाइट्रोजन फिक्सेशन बराबर है। क्रॉप रोटेशन जरूरी तय करें गई मैं मुश्किल क्रॉप रोटेशन गई कि अगर मैं वनकस ये सीजनस मरचांगन लग हर्द गुस बदल क्या लागन, अगर मैं हर्द रुहन लोग सोंद गुस मटर लागन, ये गई क्रॉप रोटेशन। इंटरक्रॉपिंग इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या अगर कि ये वनकस रुहन पालक पालक गंड ये आपकी जो एक्सपीरियंस है उसका आप शॉर्ट आप एक लेक्चर बनाएंगे, लेकिन अभी जो है जो स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बोला था कि आप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन जो है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन। और ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन में जो हमारा आज का जो है बायो कंट्रोल एजेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट है अगर हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उसमें जब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए ऑर्गेनिक किसको कहते हैं। ऑर्गेनिक ये नहीं है कि आप छोटी सी जमीन ले उसमें ऑर्गेनिक इनपुट्स डालें और आसपास की जमीन जो है उसमें बाकी नॉन ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस चले, उसको ऑर्गेनिक नहीं बोलेंगे। और जो डिमांड है खासकर कश्मीर के या जो कंट्री की डिमांड है उसको हम कैसे जब भी मैं आपके साथ बात कर रहा था वर्मी कंपोस्ट बाहर से आ रहा है, बायोफोर्टिफाइड कंपोस्ट है या जो भी ऑर्गेनिक इनपुट्स है, मेजॉरिटी ऑफ देम कम फ्रॉम आउट ऑफ द स्टेट, ठीक है ना। लेकिन इसी को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को उठना है, आप लोगों को पहल करना है कि एक बिजनेस मॉडल बनाए, साइंटिस्ट के साथ टेक्निकल एडवाइस लेके फिर उसकी एक प्रोडक्शन चेन बना के मार्केटिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग सब कुछ करे और तभी उनको उस चीज का फायदा मिल सकता है। मैं यहाँ पे हमारी एक स्टूडेंट है, शी विल इंट्रोड्यूस हरसेल्फ और ये बताएगी कि इसने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्यों पार्टिसिपेट किया और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेनिंग प्रोग्राम में। हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहवार है एंड मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ एंड मेरा बेसिकली ये रीज़न था ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने का क्योंकि मैं खुद भी आई एम वर्किंग ऑन नैनो फर्टिलाइजर्स टू मेक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सक्सेस। तो इस वजह से मैंने सोचा कि हम देखेंगे ट्राइकोडर्मा भी हाउ ये बायो कंट्रोल एजेंट्स जो है डिफरेंट टाइप्स के, तो वो कैसे हेल्प करते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल भाट है, मैं पुलवामा से बिलोंग करता हूँ। मेरा वर्मी कंपोस्ट यूनिट चल रहा है
मैंने केवी के पुलवामा से पहले ट्रेनिंग की है। ट्रेनिंग का वजह क्या है पहले आप सुन लीजिए कि ट्रेनिंग मैंने क्यों ली है। एक्चुअली मैं 2022 में गवर्नमेंट जॉब एज पटवारी कर रहा था और रिसेंटली मैंने वो रिज़ाइन किया है। मैं एक फार्मर से बिलोंग करता, मेरी भी ज़मीन है। मैंने एक बार वर्मी कंपोस्ट एक रिटेलर से ली, जबकि इसमें बहुत सा बदबू आ रहा था। जब मैंने नेट पे देखा कि इसमें कोई बदबू नहीं होना चाहिए, तब मैंने इस पर रिसर्च किया और मैं केवी के पुलवामा गया। उन्होंने मुझे बताया कि वर्मी कंपोस्ट में क्या खसूसियत होनी चाहिए, इसमें कौन सा स्मेल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके बरकस मैंने अपनी जब देखी, इसमें बिल्कुल वो अपोजिट था। इसमें इतना बदबू आ रहा था कि हम वहाँ से खाना घर वापस ले गए, यहाँ तक कि हमने वहाँ खाना भी नहीं खाया। इसके बाद मैंने अपना एक सेटअप लिया है वर्मी कंपोस्ट का। 2 बेड से मैंने स्टार्ट किया है और अपने ही फील्ड में ये डाला। इसके बाद जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट बड़ा किया, इसके बाद पूरा पिछले 3 सालों से मैं अपने बागात में यही वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर रहा था, जबकि मेरी इसकी प्रोडक्शन 1200 पेटी था इस वक्त। एक बार की बात कर रहा हूँ मैं, माशाल्लाह इस वक्त वो दूसरे साल उसने थोड़ा इससे भी कम दिया है 1100। तीसरे साल इस साल की बात कर रहा हूँ मैं, जबकि उसकी प्रोडक्शन 3200 पेटी हो गई है। नॉट ए जोक। पूरा हमारा गाँव परेशान रह गया कि हर जगह इस साल फसल एप्पल की ये मतलब प्रोडक्शन कम थी, हालांकि पूरे गांव में हमारी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा रही थी। ये बात मैं इसलिए बताता हूँ कि लोगों में एक गलत कंसेप्ट है कि केमिकल से प्रोडक्शन बढ़ती है लेकिन इससे डिक्रीज होती है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती है। जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इससे पहले प्रोडक्शन कम होती है पहले साल में, लेकिन दूसरे साल तीसरे साल ये बहुत प्रोडक्शन देती है। पेड़ी में मैंने 2 सालों 3 सालों से एक वर्ग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ, जबकि मैंने उसकी सैंपलिंग की है, बिल्कुल वो ऑर्गेनिक नहीं रहा है। इसका क्या वजूहत है? जो हमारे पड़ोसी है वो केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करे, वहाँ से मेरा पानी आ रहा था। ये हमारा सॉइल साइंटिस्ट डॉक्टर सैयद सुजावत साहब है, आप उनको अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने सैंपलिंग की, मेरा पेडी का जो रिजल्ट रहा वो केमिकल वाला रहा है, वो ऑर्गेनिक नहीं रहा। हालांकि वो चावल भी वहाँ उन्होंने हमसे ली है, लेकिन वो मैंने उसको ये भी बताया कि ये ऑर्गेनिक है, लेकिन वो मिला नहीं, ऑर्गेनिक निकला नहीं है। इसकी क्या वजह है? हमारे जो पड़ोसी है वो केमिकल का यूज कर रहे थे। देखिए प्रोडक्शन की बात अगर की जाए, प्रोडक्शन मेरा पर 2 कनाल की प्रोडक्शन 21 बोरी निकल गई है। वहां से ये मतलब उन्होंने ये लाइव देखा कि इसकी प्रोडक्शन कितनी निकल गई है, उसका वेट भी केवी के पुलवामा ने किया है। अगर उनसे भी आप बात कर सकते हैं कि उन्होंने उसकी प्रोडक्शन की पूरी मतलब जांच की है, इसकी 2 कनाल की प्रोडक्शन कितनी निकल गई है। ये मैं एक बार में कंपोस्ट की बात कर रहा हूँ या ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की। अब जो बाग की बात कर रहा हूँ मैं, बाग में खाली मैंने 4 पेस्टिसाइड लगाए हैं। वर्मी कंपोस्ट से ये नतीजा मुझे सामने आया कि इसमें बहुत सी बीमारी कम लगती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के सबसे बड़ा फायदा है। और जो इस वक्त मैं यूनिट चला हूँ, माशाल्लाह मेरा इस वक्त टर्नओवर हुआ इस साल का 50 लाख प्लस 50 लाख प्लस मेरा इस वक्त यूनिट। इसके साथ साथ मैं मतलब जो मेरे युवा है उनको मैं एक सजेशन देता हूँ, चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप फिश फार्मिंग करो, चाहे आप सेरिकल्चर से जुड़े रहो या किसी और एग्रीकल्चर सेक्टर में आप जुड़े रहो, इसमें आप सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग की मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग इस्तेमाल कीजिए और अपनी टेक्नीशियन, न कि दूसरी की टेक्नीशियन आप देखेंगे कि मैं कोई ना कोई अलग टेक्निक इस्तेमाल करूं, अपनी सोच से टेक्निक कीजिए। जैसे कि हमारे पूरे इंडिया में एक मशीन आती है सीइंग एंड ग्राइंडिंग मशीन, हमारे एक यूनिट में ये बहुत अहम रोल अदा करती है वर्मी कंपोस्ट में, जिसका टोटल मतलब 1 घंटे का काम था छनाई 16 क्विंटल, ये हाईएस्ट रिकॉर्ड था ऑल इंडिया में। जबकि मैंने एक खुद बनाई है मशीन जिसका टोटल मतलब पर आवर क्वांटिटी रहा 40 क्विंटल। ये मैंने यहाँ के ये सुकास्ट में पेटेंट भी रखा है, इसके लिए मुझे चैंपियन अवार्ड भी मिला है यहाँ पिछले 23
दिसंबर को जो हमारा ये मिशन है जो कि सबसे फास्टेस्ट इंडिया में बनी, इसके लिए मुझे कोई इंजीनियर नहीं लाना पड़ा। खुद मैंने देखा कि हमारी प्रोडक्शन, हमारी काम कैसे निपटे जाएगी जल्दी। इसके लिए टेक्नोलॉजी खुद इस्तेमाल करो, न कि किसी दूसरे के सोच पे देखो कि उसने ये टेक्नोलॉजी की है, हाँ इसने ये टेक्नोलॉजी की, लेकिन मेरी टेक्नोलॉजी इससे एडवांस होना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। इसके लिए मैं अपने युवा से यही मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस भी फील्ड में कोई आए अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे। जैसे हम बोलते हैं, मैं कश्मीरी लफ्ज करें जुगाड़, कश्मीरी जुगाड़ इस्तेमाल कीजिए। इससे हमारे इससे हमारे कम से कम लेबर का कॉस्ट 50% कम हो गया। शुक्रिया। देखिए आपने इनकी जो क्या किया है, इन्होंने पटवारी की नौकरी छोड़ के, पटवारी का जॉब कोई छोड़ता ही नहीं सबसे पहली बात, और वो छोड़ के इन्होंने ये आज तहसीलदार भी होते मे बी, तब से अब तक के तहसीलदार भी बने होते। सरकारी नौकरी को पकड़ के हमारे जवान या हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है जिंदगी भर ख्वाब ही देखते रहते हैं ना। लेकिन अगर उनको वाकई आगे बढ़ना है, देखिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद खाली आपको सुनना नहीं है। आप लोगों के लिए हमने 2 ग्रुप्स क्यों यहाँ पे किए कि जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, वो खोचन हुआ तो ब्या ग्रुप कि उनको पता चले कि आप लोग सब में पोटेंशियल होता है। लेकिन हमारी मिशन है जो ये मैंने देखा लास्ट टाइम, मैंने ये देखी है मिशन, सबसे टॉपर मिशन है ऑल इंडिया में। तो ये सबसे फास्टेस्ट मिशन ये हाँ, ये मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूँ कि आप लोग खाली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करके अपना भी टाइम यूनिवर्सिटी का जो भी डिपार्टमेंट होगा या जो भी रिसोर्स पर्सन, साइंटिस्ट हो, ऑफिसर्स हो, गवर्नमेंट का पैसा जो है खाली वो बर्बाद करने के लिए नहीं है। अपने आप की टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने वक्त का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अभी आप छोटे हैं, जवान है, आप में पोटेंशियल है, जब तक आप पहले सबसे बड़ी चीज जो है ना क्या है, अगर कोई भी चीज हमें करना है सबसे पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको करना क्या है। ये नहीं है उसने ये किया, फलानी दोस्त ने ये किया, फलानी सहेली ने ये किया, अपना ये, क्योंकि हमारे यूथ में जो सबसे लैकिंग फैक्टर है वो है क्लैरिटी और विजन। उनके पास विजन ही नहीं है। अगर हमारे समाज में कोई ऑटो लाता है तो उसके पीछे पीछे सब ऑटो लाते हैं। हमारे समाज में जैसे पहले हुआ करता है, एसटीडी का दौर चला था, एसटीडी किसी ने खोला, फिर हजारों जवानों ने एसटीडी खोला। अगर कोई ये क्लिनिकल लेबोरेटरी आज किसी ने एस्टैब्लिश की तो उसके पीछे पीछे सब एस्टैब्लिश करने लगे। लेकिन रैट रेस की तरफ मत जाइए, आप पहले अपने आप अपनी कैपेबिलिटीज पहचानिए कि हर एक बंदा यूनिक है, हर एक बंदे में अलग कैपेबिलिटी होती है ना। तो पहले अपनी कैपेबिलिटी को आइडेंटिफाई कीजिए कि मुझ में क्या सलाहियत है, और फिर उस सलाहियत को डायरेक्शन दे दीजिए। और डायरेक्शन देने के लिए एक ऑब्जेक्टिव, एक ख्वाब देखिए, और उस ख्वाब को हासिल करने के लिए उस पर काम कीजिए। ये खाली ख्वाब, सोते हुए ख्वाब नहीं चलते कि मैं सो जाऊं ख्वाब देखूं, आज मैं ख्वाब देखूं मैं करोड़पति बन गया, मेहनत के बगैर ही, सब कुछ करने के बगैर ही, ऐसे ख्वाब होते नहीं है। तो ख्वाब देखिए जो खुली आंखों से देखे जाए, ख्वाब देखिए जिसमें मेहनत हो, ख्वाब देखिए जिसमें आप अपने टाइम का पूरा इस्तेमाल कर सके। ख्वाब ऐसे देखिए, अपना ऑब्जेक्टिव, अपना विजन ऐसे बनाइए कि किसी इंस्टीट्यूशन के साथ, किसी इदारे के साथ जुड़िए जिससे आपको पता चले कि हमें क्या करना है। आप अपनी जो हमारी डेफिशिएंसीज है, जैसे हमारी स्टेट है, आपको पता है हमारी स्टेट में अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो हम इसमें भी पीछे हैं। लेकिन क्योंकि जेएंडके एक यूनिक स्टेट है बहुत सारी चीजों में, सबसे पहला है कि हमारा, खासकर कश्मीर वैली की मैं बात करूं कि यहाँ पे अगर हमारा यूथ सोचेगा कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो वो कभी नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन और हमारा जो दूसरे फैक्टर्स है, पॉलिटिकल फैक्टर हो या वो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर हो, उसमें हम बहुत पीछे हैं। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारे लिए जो है ना एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स,
दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस कि अगर हमें अपने स्टेट की जो है तकदीर बदलनी है, अपने यूथ की तकदीर बदलनी है, तो हम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स में ही हमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये वो सेक्टर है, जैसे इरशाद साहब ने बताया, जैसे कि यूनिवर्सिटी का विजन है कि अगर हमें आगे बढ़ना है अपने समाज को, अपने लोगों को, अपने यूथ को, वो इसी सेक्टर में हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी हमारी क्या है खुसूसियात है, फीचर्स है। हम जो है वी आर ए टेम्परेट स्टेट, है ना, कश्मीर वैली की बात करूंगा तो टेम्परेट, जो हम टेम्परेट है वो पूरा हमारा कंट्री नहीं है। जब हम कोई चीज बनाते हैं तब सारे मुल्क में उसकी किल्लत होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा एक ऊपर वाले ने एक वो क्लाइमेट दिया है, और जो हम बनाते हैं वो इटसेल्फ एक ब्रांड है। चाहे आप कुछ भी बोले, कश्मीर का कोई भी प्रोडक्ट हो, वो इटसेल्फ एक ब्रांड है। वो फ्रूट की बात करें, वो वेजिटेबल की बात करें, वो सैफरान की बात करें, काला जीरा की बात करें, मुश्क भुजी की बात करें, किसी भी प्रोडक्ट की बात, रेड राइस की बात करें, वो इटसेल्फ एक ब्रांड है। लेकिन अब इस ब्रांड को हमें आगे लेना है। कश्मीर ब्रांड, जिसमें हम अलग अलग चीजें कर सकते हैं, उसको आगे ले जाना है। हमारे पास इतनी डाइवर्सिटी है, मुझे लगता है कि पूरी कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी नहीं होगी, वो चाहे टेम्परेट फ्रूट्स में हो, नट्स में हो, वेजिटेबल्स में हो, एक्सोटिक वेजिटेबल्स में हो, सीड प्रोडक्शन में हो, फिर आपके जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जो हो, हनी में हो, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें हम नहीं कर सकते। फिर हमारा जो अपनी जो है कश्मीर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, जिसमें इसी एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, उसमें स्कोप है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है कि जो हमारा यूथ है, एक तो वो सरकारी नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है, दूसरा वो उनको जो सरकारी जो स्कीम्स है, यूनिवर्सिटीज है, डिपार्टमेंट्स है, बाकी चीजें हैं, उनके साथ उनको जुड़ना नहीं आता है। अगर आप जुड़ेगा भी तो बहुत कम जुड़ते हैं, क्योंकि उनको या तो वो सब्सिडी के पीछे पड़ेंगे, उन जगहों में अपने पैरों पे बहुत कम लोग जो है खड़े होते हैं, जो बोलेंगे कि मैं अपनी कमाई से ही पहले अपना ही 1000 रुपया लगाऊं, उसके बाद मैं किसी से पैसा लूंगा। जब मुझे 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए की हैसियत हो जाए ना, फिर मैं किसी स्कीम के तहत वो चीजें करूंगा। लेकिन ये प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम जो है, यहाँ मेरे साथी डॉक्टर ज़हूर बाबा है, इज एन एक्सपर्ट ऑन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। मेरे दूसरे साथी यहाँ पे है डॉक्टर खुर्शीद साहब, इनके पास 3-4 पेटेंट ऑलरेडी है, इन्होंने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे सेक्टर, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन या जो आप जैसे लोग हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस सेक्टर में आ गए हैं, लेकिन आप लोगों के लिए ओपन फील्ड है। अब कमी कहाँ पे है? कमी है आपकी मेहनत में, कमी है आपके विजन में। यूनिवर्सिटी, केवीकेज, डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स ऑलरेडी बनी हुई है। इरशाद साहब जैसा आपको बता रहे थे कि लोगों को आगे आके अपने मिशन को खुद बनाना है। जब आप 10 बार किसी जगह दरवाजा खटखटाएंगे ना, अगर उसने दरवाजा बंद भी किया होगा तो 11वीं बार वो जरूर खोलेगा। मैं कह रहा हूँ, अगर इतना भी डीएड कोई डिपार्टमेंट होगा, 11वीं बार जरूर खोलेगा, बोलेगा नहीं इस बंदे में चाहत है, इस बंदे में शौक है, तो वो इस बंदे के लिए तो मैं दरवाजा खोल ही देता। लेकिन हमारे यूथ में जो है वो है कि ऑब्जेक्टिव नहीं है। ट्रेनिंग्स बहुत करेंगे, डिपार्टमेंट्स में बहुत जाएंगे, लेकिन फिर जब इम्प्लीमेंटेशन की बात हुई तो वो भूल जाते हैं, जब मेहनत की बात हुई तो भूल जाते हैं। मेरे पास गांधरबल में एक लड़का है, 2 साल हो गए उसको खाली, उसने कोई ट्रेनिंग नहीं की थी, अनएम्प्लॉयड था, विदाउट एनी विजन, विदाउट एनीथिंग। लेकिन एक बार वो यहाँ यूनिवर्सिटी में आया। मैं वही कहता हूँ कि हजारों में एक बच्चा ऐसा निकलता है क्योंकि उसके पास मोटिव होता है। उसने क्या किया, एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग थी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में 6 दिन की, वहां उसने जहाँ पे शालीमार कैंपस में उसने वो अटेंड की। लेकिन वहीं पे उसने अपना मिशन बना लिया। 2022 की बात, अर्ली 2022 वन द वर्स विंटर था, उसने 6 दिन की ट्रेनिंग, लेकिन उसने उसी में बोला कि मुझे क्या करना है। वहां ट्रेनिंग लेके उसने खुद सीखा, यूट्यूब पे सीखा, बाकी चीजों से सीखा कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में उसने वॉलनट लिया। वॉलनट में जो वॉलनट का कचरा निकलता है, कर्नल जो है ना, जिस टाइप का चूड़ उसने दिया ना, बेबादाम चूड़ और समूचे पे क्या बना, उसने उसमें चॉकलेट्स बनाए।
उसी चूल्हे से, जो लोग बहुत कम यूज करते हैं और फेंकते हैं, या तो बेकरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है या बाकी चीजें। और पहले ही साल उसने 30 लाख रुपए कमाए, पहले ही साल, अपने घर से, अपने किचन से स्टार्ट किया, कोई इक्विपमेंट नहीं था, कोई इक्विपमेंट नहीं था। प्रेशर कुकर को उसने मॉडिफाई करके इंक्यूबेटर बनाया। उसने ऐसी ऐसी चीजें की ना, लेकिन सोच के, टाइम जाया नहीं किया। मैं कह रहा हूँ पोटेंशियल हमारे बच्चों में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको क्या हुआ है, वो लग गए हैं ड्रामा देखने में, फिल्में देखने में, रील्स देखने में, टाइम जाया करने में, बाकी सोशल इन चीजों में। लेकिन जिसके पास वाकई हो ना जज्बा हो, वो जरूर करता है। और आजकल की डेट में वो कमाता है, उसका टर्नओवर है 1 करोड़ रुपए 2 ही साल में। छोटा लड़का है 22 साल का। और रिसेंटली उसको डिपार्टमेंट की तरफ से उसको एक ऑफर आई कि उसको एक यूनिट मिलने वाला है 50 लाख रुपए का, जिससे वो शुरुआत करेगा। और उसके प्रोडक्ट्स दुबई जाते हैं, अपनी डिजाइनिंग जो है ना, ब्रांडिंग से लेके डिजाइनिंग से लेके वो खुद करता है। इतना इनोवेटिव लड़का, इतना इनोवेटिव लड़का, 2 साल में 0 से स्टार्ट करके आज वो 1 करोड़ का टर्नओवर है उसका। मैं वही कह रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कुछ इरशाद साहब हमारे पास है, इनको हम 5 साल 6 साल से जानते हैं, इनका भी ऑब्जेक्टिव है, ये अपना भी काम करते हैं, इन्होंने भी देखा कि कितना स्कोप है। या बाकी लोग यहाँ पे मुनीर साहब है, बाकी साहब है, ये फिजाना साहब है यहाँ पे। लेकिन आप अपने यहाँ पे हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, तो यही चीज आपको करना है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो है यही मकसद है कि हम आपको टेक्निकल गाइडेंस दे दें। टेक्निकल गाइडेंस से आप थोड़ा उससे आप सीखें। अपने जो हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, रिसोर्स पर्सन्स हैं, उनसे आप जो सेशंस है वो लाइवली सेशंस बनाए। ऐसा नहीं है खाली खाना खाना है, चाय पीना और भागना है, ये क्योंकि वक्त कभी आता नहीं है। जो आप आज करेंगे ना, यही आपका फ्यूचर बनेगा। आज आप वक्त अपना जाया करेंगे तो आपका फ्यूचर भी जाया हो जाएगा। आज आप जो भी काम करेंगे ना, क्योंकि वक्त फिर वापस, मैं अगर मैट्रिक का एग्जाम आज देना चाहूं, मेरे मैट्रिक में बहुत कम, से फॉर एग्जाम्पल मेरे मैट्रिक में बहुत कम मार्क्स आए थे, 50%। मैं चाहूंगा मुझे 80% मिले, आज दे सकता हूं। मैं डॉक्टरेट की डिग्री वापस कर सकता हूं। इसी तरह कोई भी, क्योंकि वी कैन नॉट रिवर्स द टाइम व्हील, ठीक है ना। तो ये अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों की भी खुशकिस्मती है, हमारी भी खुशकिस्मती है कि हम आपके साथ एक इस प्रोग्राम में मिले हैं। लेकिन इसका फायदा किसको लेना है? आप लोगों को लेना है। आप हमें तंग कीजिए, ये नहीं तो प्रॉम्प्ट, जैसे अभी सेशन है 10 मिनट, लंच सेशन हो गया, 30 सेशन हो गया, यू शुड बी प्रॉम्प्ट एनफ कि जो आपका रिसोर्स पर्सन का कंसर्न है उसको आप मान लीजिए सवालों की बौछार कीजिए। आप जो भी आपके खदशात है, जो भी आपकी क्वेरीज है, वो आप फुलफिल कर दीजिए। उसको बोलते हैं ट्रेनिंग से। ये नहीं ट्रेनिंग फॉर द सेक ऑफ ट्रेनिंग, तो आप करते रहेंगे और हासिल कुछ नहीं होगा। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे जो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमने बहुत सारे लोगों को मदद किया है। ये डिले हो गए, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम 2 महीने से कर रहे हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे इवेंट्स थे या बहुत सारे काम होते हैं जो ओवरलैप हो गए। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की रमजान से पहले, वरना हमारा किसान मेला है, हम उसके साथ भी बहुत ज्यादा बिजी है। लेकिन यही है कि ये जो 6 दिन है या 7 दिन है, ये इसका आप भरपूर फायदा ले लें, तो इससे आप फिर अपना फ्यूचर जो है ना उसको शेप करें। आप अगर अभी हाफ हार्टेडली है, इसको फुल हार्टेडली आप अपना मिशन बनाएं, ठीक है ना। मैं जो जोहर साहब है, क्योंकि उनको दूर जाना है, पहले मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आपसे अपने कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कुछ बताएं, उसके बाद खुर्शीद साहब आगे बढ़े। डॉक्टर इशफाक साहब, डॉक्टर खुर्शीद साहब, शाहीन साहब और दीगर साइंसदान हजरात फ्राम KVK गांधरबल, और हमारी खास जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने दिलचस्पी दिखाई इस प्रोग्राम के तई। ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई नई चीज़ नहीं है, ये वही पुरानी चीज़ है जो हम थोड़ा मॉडर्न लाइन्स पे करना चाहते हैं, रिवाइव करना चाहते हैं।
چونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ آج کل نیشنل لیول پہ پروگرام چل رہے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، انٹرنیشنل پروگرام ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. وہ ترقی ہمیں کرنی ہے، لیکن ترقی اس طرح کی کرنی ہے کہ جو ہمارا ماحول ہے، جو ہمارا صحت ہے، چاہے وہ زمین کا صحت ہو، آبی ذخیروں کا صحت ہو، جو حیوانات ہیں زمین میں، نباتات ہے، ان سب کا صحت کسی طرح سے مطلب اس پہ کوئی مضر اثر نہیں ہونا چاہیے ہمارے ڈیولپمنٹ کی وجہ سے، ہماری ترقی کی وجہ سے. تو جب ہم ایگریکلچر کے ساتھ اس کو جوڑ دیں گے تو سوائل ہیلتھ سب سے ایک اہم چیز ہے. سوائل ہیلتھ کس کو ہم بتائیں گے؟ سوائل ہیلتھ اس کو ہم بتائیں گے کہ زمین کی جو حالت ہے وہ خراب نہیں ہونی چاہیے، وہ ہم اس حالت میں اس کو رکھنے چاہیے تاکہ جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو بھی یہ سوائل، یہ زمین ایک اچھی حالت میں ملے، جیسے ہم نے اپنے اینسسٹرز سے، بزرگوں سے یہ حاصل کی ہے، اسی طرح سے ہم سے یہ ہمارے بچوں کو بھی یا آنے والی نسلوں کو بھی ایک اچھی صورت میں ملنی چاہیے، پولیوٹڈ نہیں ہونا چاہیے، آلودہ نہیں ہونی چاہیے زمین. تو یہی ایک کوشش ہے اس پروگرام کے ذریعے، تاکہ ہم آپ لوگوں کو یہ سکھائیں کہ ہم ایسی کون سی چیزیں بنائیں جن سے ہم پیداوار حاصل کریں اور جن سے ہم زمین کو محفوظ رکھیں، اور سب سے اہم چیز جس سے ہم روزگار حاصل کریں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی ہم روزگار دے سکتے ہیں. اگر ہم جیسے اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک سیریس مائنڈ سے اس ٹریننگ پروگرام کو لینا ہے، ہمیں اس میں نان سیریسنس نہیں دکھانی ہے، کیونکہ یہ ایک روزگار کے ساتھ جڑا ہوا ایک ایونٹ ہے. جب آپ اس کو شروع کریں گے، کسی وینچر کو شروع کریں گے، تو اس کے ذریعے سے آپ کسی کی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اگر مان لیجئے کہ آپ نے اپنے وینچر میں 2 لوگوں کو کام دیا ہے، تو ان 2 لوگوں کی فیملیز آپ کی وجہ سے سپورٹ ہو رہے ہیں، ان کے بچے پلیں گے، وہ پڑھیں گے، ان کی زندگی بہتر بن سکتی ہے. تو آرگینک فارمنگ تو آپ لوگ روز سنتے ہیں کہ آرگینک فارمنگ کیا ہے، اس کی ان پٹس کیا ہے، لیکن یہاں پہ اس یونیورسٹی میں آپ دیکھیں گے پریکٹیکلی کہ لیبارٹری میں جائیں گے، آپ وہاں سیکھیں گے کہ کیسے ہم امپروو کر سکتے ہیں، کیسے ان پٹ پروڈکشن آپ کر سکتے ہیں. تو یہی مقصد ہے اس ٹریننگ پروگرام کا. بس میری یہی گزارش ہے کہ اس کو آپ لوگ اچھی طرح سے ایک بہترین موقع سمجھ کے اس سے فائدہ حاصل کریے.